To openers on the ground, remind you are watching Cricket के रंग महिंद्रा स्पोर्ट्स के संग. The match between Pandurang Dharma Patil, Dhanesh Kukse and Habib Ansari from team. Thank you, commentary Indian. box. थँक्यू कॉमेंट्री बॉक्स. मान्यवर कक्षामध्ये यांचं आगमन झालं होतं. विभाग प्रमुख लोणार गट शनेश्वरजी वाकडे साहेब यांचं स्वागत आणि सन्मान शरदजी मात्रे आपण आपल्या शुभास्ते करायचं आहे. शनेश्वरजी वाकडे साहेब जी विभाग प्रमुख आहे लोणार गटाचे, त्यांचं स्वागत आणि सन्मान शरदजी मात्रे आपल्या शुभास्ते करतायत. त्यांना शाल त्याचबरोबर जे आकर्षक सन्मान चिन्ह नेहमीच त्यांना स्पर्धेची आठवण देत राहील असं देऊन त्यांचं स्वागत आणि सन्मान केलं जात आहे. त्यानंतर महेशजी म्हात्रे समाजसेवक सोनाळे, महेशजी म्हात्रे समाजसेवक सोनाळे यांचंही स्वागत आणि सन्मान. महेशजी म्हात्रे आपण यायचं आहे पुढे. शरद म्हात्रे आपण आपल्या शुभास्ते यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. त्यांनाही आपण एक भगवी शाल त्याचबरोबर आकर्षक सन्मान चिन्ह नेहमीच त्यांना या स्पर्धेची आठवण देत राहील असं देऊन त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. त्यानंतर उपशाखा प्रमुख सोनाळे सुखदेवजी हरट यांचंही स्वागत आणि सन्मान शरदजी मात्रे आपण आपल्या शुभास्ते करायचं आहे. त्यांनाही आपण एक भगवी शाल जी हिंदुत्वाचं प्रतीक आणि शिवसेनेचं प्रतीक आहे त्याचबरोबर एक आकर्षक सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. हनुमानजी तरे यांचंही स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी करायचं आहे. हनुमानजी तरे यांचं स्वागत आणि सन्मान केलं जात आहे. बॅक टू क्रिकेट नाव. Thank you, Gavli sir. Saiban Fakki and Miraj, these two are opener. Batting power play taken, and it's going to be Bhavish Pawar open the bowling attack from Sham Naik Gallery end. 6-6 over first semi-final. Uses feet driven nicely, all on the ground to long off, and with the stroke there's a sloppy work, good running between the wicket. And finally batsman gets two. Yes, I think it's a good start. Siddiq, there are two changes that you see. Yesterday, B Indian opening pair was different and bowling opening pair was different for Dhanesh. In this game, both the teams have adopted a different strategy. Yes, because this is the semi-final. Bhavish Pawar. Both this time fine delivery ask for the LBW question. Leg by signal from umpire. But fine delivery and Saiban tried to work the way on the onside. Drop on his foot. But they go for a leg by 3 for no wicket. B Indian losing a toss batting first here in the first semi-final of MLA Trophy 2017. पंकज पाटील यांनी कुक्षेवरनं धनेश इलेव्हन संघाला हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. And there we watch Bhavesh Pawar. But this time try to mighty blow. Looking for a runs, direct hit. And umpire take the help of TV umpire. Was this required, in fact? Because you are playing semi-final. You got to wait for some time. You have got one extra over. And that was really a poor call between Saiban and Miraj. वेलकम रवींद्र तरे सर. सूत्रसंचालक आपलं हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम. So Miraj is out. Poor calling between the two. Siddiq, I fail to understand one thing, that B Indian is playing 6 overs game instead of 5. So someone should have waited at the crease, and this opportunity is wasted by B Indian. Very good throw on the stumps, and they have lost their first wicket. Yes, there is a huge congratulations for Vihan Mitkumar from
Balaram Chaudhary, the corporator of Bhiwandi Nizampur Mahanagarpalika. I think this is not a very good start from B Indian, especially Mehraj. He looking for a runs. And finally, what an excellent throw from Captain Bhavish Pawar. Direct hit and batsman on his way. New batsman in Baba is the informed player. Baba, one of the classic stock player in this season. And there we watch Bhavesh Pawar turn from Sham Naik gallery and left arm round the wicket. Goes to Baba, short lifting, try to uppercut, beat him outside the off stump. I think this is the lovely start from Bhavesh Pawar. He generates the pace and as per as bounce from the pitch. Look at the variety with which he is bowling. Last delivery was certainly like a chin music, and the delivery before that was a totally different ball. He is certainly bowling a quality with variety. Bhavesh ball this time drive in the gap, ball is racing all the way to the extra cover and between cover for 4. This was a poor delivery into the strong zone of informed batsman, and batsman showing Baba what his form is all about. What an elegant looking cover drive. Slightly a pitch stroke indeed, but finds the gap very well between cover and extra cover. No chance to Akhtar Sheikh and Shekhar Dalvi, and ball is racing all the way to the boundary for 4. Left arm round the wicket. Goes to Baba, another good looking stroke. They threw for a quick single. Need a direct hit there. Hemant Adad is there, but with the stroke batsman threw for a risky single. That marks an excellent overturn from Bhavesh Pawar, who given me only 8 runs and claim 1 wicket. You are watching the first semi-final of MLA Trophy 2017. Welcome all of you, wherever you are from. MLA Rupesh Matre, Loina Bhivandi, Sanjay Matre, Mahindra Sport, Mayuresh Sports, and Gaudevi Sports Bhadwar. The news from the ground is Mahindra lost the match against Vihan Mit Kumar in quarter final. The exciting finish of previous match. But this is the big upset in this tournament. Yes, and the score was enough. It was just that the bowling application for Mahindra Sports couldn't work today, and hats off to Sham, who stayed at the crease and ensured that his team wins the game. Cricket needs finishers, and as long as you have players who can finish the game, you will keep winning it. Yes, no doubt at all. Sham Chaudhary played an incredible inning. Hats off him. What an amazing performance. He's going to be Akhtar Sheikh brought into the attack. Goes to Baba away from the off stump. He bows in Dusra Mohalla, white signal from umpire. 1 to score now 9 for the loss of 1 wicket. Today is the 2nd April, and today is the birthday of Michael Clarke, the former Australian captain. And today, Cutley Ambrose debut against Pakistan in 1980, Georgetown, Barbados. This time Trevor nicely picks on the full. Jayesh Patil finds the ball at wide of long on. Enough time, batsman gets 1. 1 more to total now, 10 for the loss of 1 wicket. Siddiq, now it looks a kind of a more sensible cricket, because both these batsmen are trying to now hit ground shots instead of going in the air. And this makes me believe that B Indian has started on a confident note, although they lost Mehraj early. But now they realize that they have the winning formula. Akhtar Sheikh. Ball this time put away nicely in the gap. But what an excellent work from Jayesh Patil. One of the very good fielder. Cut off inside the boundary line, and batsman takes only 1 run. अरुण भोई सर, आपलंही हार्दिक स्वागत आहे मान्यवर कक्षामध्ये. वेलकम. Superb fielding by JP towards his left, towards his right.
9 out of 10 tennis ball cricketers in Mumbai run with the ball to give the throw. And look at him, he threw it from his position. That speaks volumes about his cricket. Yes, one of the great outfielder like Jayesh Patil. This time full toss once more, not a very good stroke. No ball signal. Beamer, unconventional shot I think, because he played earlier. Ball is coming little bit late on the bat. And what this ball has done, it has given an opportunity of a free hit to the batsman, at the same time one extra delivery. Yes, this is the plus point. This is the plus point in favor of Indian. Today, Sanat Jayasuriya made fastest century in 48 balls in 1996, and today India won the World Cup 2011 at Wankhede Stadium. Here goes Akhtar Sheikh. Ball this time, lovely ball, and this is the poor running. This is the poor running. In free hit, batsman gets run out. Both the B Indian wickets have been by way of run out, and run out on a free hit is unpardonable sin. Newman in team and Danish Qazi sending. But we मराठा लाख now. मराठा जाऊन ऐशी जात Look at that. पेटवली Poor running between the मराठ्यांमध्ये wickets. No need अस्मितेची for ज्योत. dash. And finally, Saban Fakki on his way. Second wicket has gone now. Score is 13. Not enough total on the board. And this is a very good start from Dhanesh. Yes, I mean, the last thing that any cricketer wants is getting run out on a free hit ball. I mean, this is certainly not digestible. He could have just stayed on. I mean, there couldn't have been any harm, but now they have got an extra wicket. And this will boost the confidence of bowler Akhtar, because he was not bowling right areas. But with this wicket coming in, that should motivate him to an extent. Akhtar Sheikh, who is the wicket taker bowler of Dhanesh Kokse. This time another, yes. And ball is racing for 4, and Akhtar Sheikh banned for this match. Because 2 beamer in this over. पेटवली हो मराठ्यांमध्ये This is, अस्मितेची ज्योत. certainly a foolish way of माग हा कडाडला. free hit, मराठी माती and it's a जागी foolish माग हा way to कडाडला. bowl. Yes, because Akhtar Sheikh is the main front line bowler, is banned in semi-final. 2 beamers so far, and very disappoint for Akhtar Sheikh and disappoint for Bhavesh Pawar. Jayesh Patil also not happy because Akhtar Sheikh bowled 2 beamer in this over and he scored bouncing 218. Free hit. Now in place of Akhtar Sheikh, Mahesh Thakre brought into the attack. Bunty Shilke joined with us. Next match, the second semi-final between NR Borpara and Vihan Mitkumar. हॅलो धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स आमदार चषक 2017 मध्ये आपणा सर्वांचं मी रवींद्र तरे सर पुनश्च एकदा हार्दिक स्वागत करतोय. मित्रांनो, ओम साई ऑटोमोबाईल्स या शोरूम मध्ये आलेली कमांडो बाईक आणि निश्चितच आमदार चषक 2017 चा अंतिम दिवस आहे आणि काही थोडेच कुपन निश्चितच व्यासपीठावर शिल्लक आहेत. बाईक प्रेमींना विनंती आहे की या कुपनवर आपलं नाव कोरायचं आहे आणि लकी ड्रॉच्या माध्यमातून आज आपण अनुभवणार आहात लकी ड्रॉ कमांडो बाईक. अमेरिकन बाईक आहे आणि जवळजवळ 2.5 लाख रुपये किमतीची ही बाईक आपल्यासाठी आमदार चषक 2017 ची ही शान. आपल्याला कुपन हवे असतील तर आमदार चषकामध्ये येऊन आपण व्यासपीठावर हे कुपन घ्यायचे आहेत. ओ टू कॉमेंट्री बॉक्स. Welcome Ravi sir and thanks. In place of Akhtar Sheikh is going to be Manoj Bhir brought into the attack because captain not take the risk. Bhavesh Pawar, you know, 2 very good player on the pitch like informed batsman Baba and pinch hitter Danish Qazi. This is certainly a test of nerves for Dhanesh 11. A lot of ups and downs in this game. If you see, on one hand, we have seen B Indian not having good calling and running between the wicket. On the other end, there is a lack of confidence in bowling towards one side of the stump from Dhanesh 11, except for Bhavesh Pawar. Dhanesh has struggled, and both the teams are having their own challenges and difficulties, and
the winner would be the one who comes out of those difficulties and prove themselves tonight. Yes, it's going to be Manoj Bhoir, turn from RK Patil stand end, and facing him Baba. Siddiq bhai, there is a strong breeze going on this particular ground, and a drift would also certainly play a very big role in deciding the score line as well as the fate of the teams. Yes, and I think very good toss from captain of B Indian. He is sending a left-handed batsman Danish, the pinch hitter, because from other end, from far end, if bowler ball, there is a lot of opportunity for left-handed batsman, because breeze is running from west to east. And from this end, there is the opportunity for right-handed batsman. Now Baba on a strike, Manoj Bhoir. Left arm round wicket. Goes past us, facing him Baba. B Indian 18 for the loss of 2 wickets. Manoj Bhoir. Goes to Baba, this time not a very good stroke. Ball is travelling straight to long on. Loosener one, but around the off stump there is a huge gap on the offside, because two fielder patrolling at gully and point inside the 30-yard circle. And Baba played a cross-batted stroke and he guessed one. What's happening there? Yes, what's happening there? Bell is off before they deliver the ball. And what's the decision from the umpire? Umpire decision is the last and final decision. No arguments with umpire Sanjay Matre and organizing committee announce here. Umpire decision is the last and final decision. Both team request. आणि निश्चितच वंदना मनोहर म्हात्रे यांनी सुद्धा कमांडो बाईकचं आज कुपन फाडलेलं आहे. मनोहर म्हात्रे आपलं मी हार्दिक आभार व्यक्त करतोय आणि शुभेच्छा देतोय. कमांडो बाईकसाठी आपण हे कुपन फाडलेलं आहे. आम्ही आपणाला कुपन देत आहोत. आपले नशीब जर असतील आणि आपलं नाव जर याच्यामध्ये येईल तर आम्ही तुम्हाला सायंकाळच्या सत्रामध्ये बाईक देऊ. आपण आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर पाहत आहात कमांडो बाईकसाठी 1000 रुपयांचं हे कुपन. व्यासपीठावर विराजमान प्रकाशजी शिंदे, विभाग प्रमुख शिवसेना, उपविभाग प्रमुख अशोकजी भोसले, शाखा प्रमुख कामतगर विनोदजी सकपाळ आणि वालशींचे उद्योगपती गणेश वाकडे, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. प्रकाशजी म्हात्रे उपशाखा प्रमुख, आपलं सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. माजी सरपंच सरवली संतोषजी पाटील, बळीराम तरे पाईपलाईन विभागीय विद्याप्रसारक मंडळाचे विद्यमान संचालक, गटप्रमुख संतोष तरे शिवसेना, लक्ष्मण नाईक, आपलं सुद्धा मी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. मनोहरजी म्हात्रे, आमच्या सर्व अन्य पाहुण्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. कृष्णा पाटील, पहिल्या दिवसापासून आमदार चषकामध्ये त्यांची उपस्थिती आहे, मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. दीपक तरे, Umpire signaling a dead ball, so free to continue, I think. Yes. आणि आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर कमांडो बाईक, एक जबरदस्त अमेरिकन स्टायलिश बाईक आहे. शेवटचे काही कुपन शेष आहेत. नंतर आल्यानंतर आम्ही कुपन देऊ शकत नाही कारण ते संपणार आहेत याची आम्हाला खात्री आहे. आपण आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर आमचे अन्य पाहुणे पाहत आहात. So free to continue. B Indian 18 for the loss of 2 wicket. You are watching cricket के रंग महिंद्रा स्पोर्ट्स के संग MLA Trophy 2017, the first semi-final between B Indian and Dhanesh Kokse. सिद्दीक भाई, यहाँ पर मैं जो कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की है जरा उनके बारे में भी जिक्र करना चाहूँगा. हमारे जो कार्यकर्ता है महेंद्र विविध समाज कल्याणकारी संस्था महेंद्र स्पोर्ट्स, मयूरेश एंटरप्राइजेस और श्री गावदेवी स्पोर्ट्स के राहुल, तेजस, रंजीत, रोहित, रुचित, सूरज, सुमित, राहुल,
जय, पुनीत, पवन, मेराज, ओमकार, सतीश, करण, नीलेश और विपुल, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. Manoj Bhoir, free hit in favor of B Indian. Here he go. Left arm round wicket. Goes to Baba. This time put away. Over mid wicket. What a classical stroke. 6 runs. Today is Sunday, but he gave away pin number of his ATM debit card and Baba withdrew the maximum. Misdirected Yorker from Manoj Bhoir. And Baba put away very nicely indeed. Plenty of power behind the stroke. Look at that. Inside the line. Swung does ball high in the air. Over mid wicket for a glorious 6. Free hit ball, you can never bowl a full toss. I mean, that's the last thing that you want, and it was in the zone, bowled to an in-form Baba, and Baba said Tata to that ball. Yes, this is the gift from Manoj Bhoir. Here he go. Left arm round wicket. Facing him, Baba. Goes to Baba, this time left lone. No stroke offered sensibly because ball is away from the off stump. Manoj ball in Dusra Mohalla. White signal from umpire. 1-2 score now, 25 for the loss of 2 wicket, and I think B Indian come back in the game. Yes, previous bowler Akhtar was a lefty bowler and even Manoj is lefty, and they are not getting right kind of help from this wicket by bowling against the wind. Here goes Manoj Bhoir. This time another wide. Yes, there is a clear frustration in this over, like Akhtar Sheikh and key bowler Manoj Bhoir also. So continuously they are trying to keep the ball away from the batsman so that he cannot hit it with the wind. But in process of doing that, they are bowling too many wides. Yes, absolutely true, because breeze is running west to east. Manoj Bhoir. Goes to Baba, this time fine delivery, use the short back lift, tray 1-2, deep wide dish, long off, they go for one, Danish looking for a second, sensible sending back from Baba, and batsmen settle for one. B Indian 27 for the loss of 2 wicket, second over in progress. Siddiq by way of timings, by far this is the most time consuming over of the tournament, I guess. It has gone past the stipulated time if you look. Long over. Yes, this is the longest over, because 2 beamer from Akhtar Sheikh, then Manoj bowled 2 wide. And Akhtar Sheikh also bowled 1 wide. 5 extra delivery in this over. Manoj Bhoir, left arm round the wicket, goes to pinch hitter Danish. He is a very dangerous player. This time tucked away on the onside. Nice looking push. And Danish Qazi off the mark. That marks end's longest over end now. End of the second over, his score is 28 for the loss of 2 wickets. धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स. मित्रांनो, मी स्वागताकडे वळतोय. आमदार चषक 2017 चा आजचा अंतिम दिवस. प्रकाशजी शिंदे विभाग प्रमुख शिवसेना यांचं स्वागत करण्यासाठी मी शरद म्हात्रे आपणाला विनंती करतो, आपण त्यांचं स्वागत करायचंय. पाहुण्यांचं नाव घेतल्यानंतर कृपया आपण उभे राहायचं आणि स्वागताचा स्वीकार करायचा आहे. शिवसेना विभाग प्रमुख प्रकाशजी शिंदे. आमदार चषक 2017 मध्ये त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. उपविभाग प्रमुख अशोक भोसले यांचं सुद्धा स्वागत करायचं आहे. सुस्वागतम. कामतघरचे शाखा प्रमुख विनोदजी सकपाळ, आपलं सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. 26 मार्च पासून आजपर्यंत पाहुण्यांनी चांगली उपस्थिती लावली आमदार चषक 2017 मध्ये. गणेशजी वाकडे, उद्योगपती वालसीन, आपण सुद्धा समोर यायचं आहे. स्वागत आहे. त्याचबरोबर श्रीनिवास एलगेट्टी विभाग प्रमुख अंजूर फाटा. श्रीनिवास एलगेट्टी विभाग प्रमुख अंजूर फाटा.
स्वागत होत आहे आमदार चषक 2017 मध्ये स्वागत करत आहे शरदजी म्हात्रे. विष्णू पॉल यांचं सुद्धा स्वागत करायचंय. त्यानंतर संजय निकम आणि युवराज कांबळे. हेमंत हडट को गेंदबाजी दी गई है. इस मरतबा लंबा हिट लेना चाहते थे, बल्ले पे पूरी तरह गेंद नहीं आई. विकेटों में गेंद थी, जगह नहीं थी शॉट खेलने की. गेंद लुढ़क कर पहुंची जयेश पाटिल के पास. 1 रन से बी इंडियन का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. पहले ओवर में 8 रन बने, दूसरे ओवर में 20 रन बने, जो निर्णायक रहेंगे इस मुकाबले में. हालांकि दिन की रोशनी में हमने देखा है 75, 80, 85, 89 तक स्कोर गया है और इसलिए हाई स्कोरिंग गेम होने की उम्मीद है. लेकिन इस वक्त बी इंडियन जो है एक अच्छी स्थिति में आ चुकी है पहले 2 विकेट जल्दी खोने के बाद. हेमंत हडट राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए इस मरतबा गेंद को घूम के दिया स्टैंड में. 6 रन. टिपिकल बाबा स्ट्रोक. आयोजन केलंय भगवड गावाला. आमदार चषकाचं आयोजन केलंय टेंभर पाड्याला. ये देखिए कितनी लूजनर गेंद थी वहां पर और कितने आराम से गेंद को खेल दिया था. हालांकि बल्ले से एक हाथ छूट गया था लेकिन गेंद आर के स्टैंड में जाती हुई. कल हमने देखा ग्यासुद्दीन के हाथ से भी एक बार गेंद छूटी थी, शायद पसीने की वजह से ये कभी हो सकता है. बहुत तपती हुई धूप है इस वक्त, लेकिन बाबा की तारीफ करनी होगी. जैसे ही गेंद उनको स्लॉट में मिली उन्होंने उसे खेल दिया था फाइन लेग के ऊपर से. बहुत ही बढ़िया स्लॉग यहाँ पर बाबा द्वारा. और बाबा की बल्लेबाजी इस वक्त मासूम चेहरा वार गहरा ऐसी बल्लेबाजी हो रही है. 35 पे पहुंचा है बी इंडियन का स्कोर और कहीं ना कहीं धनेश कुकसे की अब कठिनाइयां बढ़ती हुई, क्योंकि उनकी गेंदबाजी की जो ताकत थी अख्तर शेख, वो इस मैच में गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे. हेमंत हडट राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए इस मरतबा मिसक्यू हुक, लेकिन गेंद जाएंगी पीछे 4 रनों के लिए. आज बाबा का नसीब भी बाबा को साथ दे रहा है. हालांकि मिसक्यू हुक शॉट था, ऊपरी सिरा लगा था. शॉट फाइन लेग के फील्डर मनोज भुईर के पास से गेंद जाती हुई 4 रन. वेलकम सुरेंद्र पाटील, होमसाई ऑटो किंगचे प्रोप्रायटर आहेत आणि या ठिकाणी निश्चितच कुपन फाडलं जात आहे. अब रन किस तरह आ रहे हैं जरूरी नहीं, रन आना जरूरी है बी इंडियन के लिए. किरण रमेश भुईर 39 रन हो चुके हैं बी इंडियन के. इस मरतबा बैकलिफ को नीचा किया, बहुत खूबसूरत टर्न किया पैरों के सामने. आउटफील्ड में जयेश पाटिल के पास 1 रन. 40 पे पहुंचा है बी इंडियन का स्कोर. एक बात तो जरूर है कि जितने ज्यादा रन बनेंगे उतना दबाव धनेश पे आ जाएगा. 6 ओवर का ये सेमीफाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं. किरण रमेश भोईर भिनार लकी कुपन साठी निश्चित कुपन घेतलेले आहे. धन्यवाद. हेमंत हडट इस मरतबा बहुत बढ़िया गेंद, अपील और आउट. एलबीडब्ल्यू. स्लो डेथ ऑफ भिवंडी फारूक बर्डी का जाने का इशारा. बिल्कुल स्टंप टू स्टंप बॉल को रखा था. या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे भरत कृष्णा तरे, भगवान हशा म्हात्रे, नरेश माळी मामा, आपला हार्दिक स्वागत आहे. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं मतीन. स्कोर है बी इंडियन का 40 रन 3 विकेटों के नुकसान पे. 40 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. सिद्दीक भाई 27 रनों की साझेदारी वहां पर 2 बल्लेबाजों के बीच में रही. पहला विकेट 8 पर गिरा था, दूसरा 13 पर, और उसके बाद ये पार्टनरशिप जो है, हालांकि इसमें वाइड बॉल और उसके अलावा फ्री हिट वगैरह हमने देखा, लेकिन ये पार्टनरशिप निर्णायक रहेगी. 27 रनों की पार्टनरशिप और मतीन बैटिंग ऑर्डर में अपने आप को थोड़ा नीचे लाते हुए.
हेमंत अरट, श्याम नाइक गैलेरियन से गेंदबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे मतीन। इस मरतबा दूर से खेले थे, वहां पर पैरों में हरकत नहीं थी। 3 ओवर की समाप्ति, 40 रन बचे। 3 ओवर में क्या होता है ये सुनते हैं। गोल्डन वॉइस ऑफ टेनिस क्रिकेट हरीश पंड्या, और उनका साथ निभाएंगे मैजिकल वॉइस ऑफ मराठी डॉक्टर गवली सर। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक बाबे। महेंद्र विविध समाज कल्याणकारी संस्था महेंद्र स्पोर्ट्स, मयूरेश एंटरप्राइजेस और गांवदेवी स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित भिवंडी पूर्व के सम्माननीय विधायक सम्माननीय रुपेश दादा मात्रे इनके लिए आयोजित आमदार चषक 2017, उनके सम्मान में यह क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। 26 मार्च को इसकी शुरुआत हुई और आज इसका आखिरी दिन है। अंतिम दिन में ये पहला सेमीफाइनल चल रहा है। इस वक्त धनेश 11 और बी इंडियन के बीच में। धनेश 11 टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था, आमंत्रित किया था बी इंडियन को। 2 विकेट जल्दी खोने के बाद इस वक्त बी इंडियन एक अच्छी स्थिति में। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर हो चुका है कुल मिलाकर 40। तो डॉक्टर, पहले ओवर में 8, दूसरे ओवर में 20 और तीसरे ओवर में 12, क्या कहना चाहेंगे आप? और आपके टीवी मॉनिटर पर आप हमारी स्कोर शीट को देख रहे हैं, बहुत क्लोज इन। और नए ओवर की शुरुआत भावेश पवार ने अपने छोर को बदला है। पहली बॉल थी, मिडल लेग पर फुल टॉस आई थी और बाबा ने वहां पर उसे खेल दिया था 1 रन के लिए। तो ये 1 रन के साथ स्कोर हो गया 41, 2 विकेटों के नुकसान पर। सुमित पाटील राहणारवरून यांनी हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत, खास करून भावेश पवारला दिलेल्या आहेत, धैर्यशीलला। त्यानंतर विकास पाटील केवणीदेवीवरून यांनी सुद्धा दोन्ही संघांना आयोजनाला हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। 12 बॉल में 30 रनों की तूफानी पारी यहां पर बाबा द्वारा, और मतीन का अभी आगमन हुआ है। सहबान 3 पर आउट हुए थे, 0 पर आउट हुए थे मिराज, 2 पर आउट हुए थे दानिश, और यहां पर अब अंपायर गोकुलदास बॉल को वाइड देते हुए। बॉलर एंड पर अंपायर गोकुलदास है, स्ट्राइकर एंड पर फारूक बर्डी और तीसरे अंपायर है फैज रईस। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। फुल टॉस बॉल थी और देखिए क्या अंदाज में खेला है अफलातुन। बिल्कुल अक्षय कुमार का गाना याद आ गया मुझे, अफलातुन मैं हूं अफलातुन, और बिल्कुल हवा में हिलोरे लेती हुई बॉल मैदान के बाहर। क्या कहेंगे डॉक्टर? फुलटा चेंडू होताना ज्याप्रमाणे समाचार घ्यायला हवा होता त्याप्रमाणे समाचार मतीन याने घेतलेला आहे, भिरकावून दिलेला आहे। डीप मिड विकेट सीमापर आपण पाहू शकता। 6 धावांसाठी षटकार। बहती हुई जो हवा है, आप झंडे अगर देखें तो वो हवा का रुख बताते हैं। बिल्कुल देखिए किस तरह गई, हवा के साथ साथ घटा के संग संग और साथ ही चल सीधी बॉल मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। मित्रांनो, आपण जो सामना पाहतोय आमदार चषक 2017चा पहिला उपांत्य फेरीतला सामना, सेमीफायनलचा सामना 2 बलाढ्य संघामध्ये। धनेश 11 कुक्से विरुद्ध बी इंडियन। 48 रन बने हैं और मतीन ने आते ही अपने बल्लेबाजी के कौशल्य का परिचय दिया है। हाफ ट्रैकर बॉल थी, गलत शॉट, और अब मतीन को लौटना होगा। बड़ा विकेट। आमदार चषकाचं आयोजन केलंय भागवड गावाला। आमदार चषकाचं आयोजन केलंय टेमघर पाड्याला। गाजतय नाव गाजतय, गाजतय नाव गाजतय, नाव गाजतय रुपये गाजा भिवंडी शहराला। थँक्यू डीजे। या ठिकाणी आगमन झाले आमचे मित्र संतोष पाटील उर्फ पिंट्या सरवली, हार्दिक स्वागत आहे। डायनामिक पर्सनॅलिटी, आज बरेच दिवस त्यांची उपस्थिती आमदार चषकामध्ये आहे, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। शॉर्ट बॉल होता आणि पूल करण्याचा जो प्रयत्न केला होता, मात्र बॅटच्या पट्ट्यामध्ये चेंडू हवा तसा आलेला नव्हता आणि त्यावर मात्र मतीनेची खेळी संपुष्टात आलेली। एक सॉफ्ट डिसमिसल, सहज सोपा सुंदर झेल बघायला मिळाला आहे। अभी अभी 6 लगाया था और इसलिए सिंगल लेकर स्ट्राइक बदलना ये लाजमी था। और डेड बॉल। तो नए बैट्समैन है हसीब।
हसीबेने एकाच षटकामध्ये 7 षटकार मारण्याचा विक्रम केला होता मराठी बाणा चषक मध्ये. इस बार शॉर्ट आर्म पुल है, गेंद के नीचे जेपी और यहां पर ये हसीब आउट. बहुत बड़ा विकेट. धनेश 11 की पूरी वापसी हो चुकी है. म्हणूनच क्रिकेटला एक अनिश्चिततेचा खेळ संबोधला होता. बॅक टू बॅक दुसरा धक्का आपण बघितलं. शॉर्ट बॉलला पूल करण्याचा जो प्रयत्न केला होता मात्र मिड विकेटला क्लिअर करता आले नाही आणि वंडर बॉय भिवंडी जयेश पाटील यांनी मात्र अप्रतिम झेल घेतलेला आहे. जवळपास वाईट ऑफ लॉंग ऑनला उभा होता आणि डीप मिडॉनला येऊन झेल घेतलेला आहे. दूसरी एक चीज आप देखें, भावेश पवार लगातार शॉर्ट पिच गेंदे ऑफ स्टंप पर कर रहे हैं. बल्लेबाजों को हवा के साथ ललचा रहे हैं स्ट्रोक खेलने के लिए, लेकिन उनकी गेंदें जो रफ्तार से आती है उसको पुल करना उतना ही कठिन हो रहा है. और अभी अभी मतीन के आउट होने के बाद हसीब को चाहिए था कि वो विकेट पर रुकते. हसीब भी हवा में रनों को बटोरने गए और उन्होंने अपना विकेट दे दिया, यानी कि वो भी शून्य पर लौटे. हैट्रिक बॉल थी, अब देखना होगा. और शहजाद हैट्रिक को पूरा किया भावेश पवार ने. यह तो चमत्कार हो गया, बहुत बड़ा चमत्कार. गणेश बैक इनटू द गेम. चौथा ओवर चल रहा है और ये बहुत ही उम्दा हैट्रिक कही जाएगी. पहले एक गेंदबाज जो है अख्तर, उसको गेंदबाजी में बैन किया जाता है. उसके बाद सारे जो रन रेट है वो आपके विपरीत है और प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने वाला कैप्टन कूल भावेश पवार, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. 3 विकेटें ले ली और दिखा दिया कि क्रिकेट में कुछ भी संभव है. जे सीमारेषेच्या कंपाऊंडवर बसलेले जे प्रेक्षक इस बार बहुत ज्यादा पेस से करने का प्रयास और रफ्तार यहां पर महंगी पड़ेगी. 4 रन. प्लेस पवेलियन में सिर्फ 11 खिलाड़ी बैठना है और अपने कोच ध्यान में रखना है. प्लेस पवेलियन इंडियन के कप्तान वहां कोई भी आपका समर्थक नहीं बैठेगा, आपके खाली खिलाड़ी और आपका कोच बैठेगा. ध्यान में रखना है वरना आपको पेनल्टी मिलेगी. के कप्तान ध्यान में रखिए. 4 ओवर बाद 52 रन. इस ओवर में 12 रन बने, लेकिन इस ओवर में अगर आप देखें 3 विकेट भी चले गए. बी इंडियन के लिए ये खरीदारी महंगी पड़ी 12 रनों की. ऐसा लगा मानो किसी शॉपिंग मॉल में गए, ऑफर चल रहा था समर सेल का, और घर वापस आए और बिल देखा तो पता चला कि ये खरीदारी महंगी रही. दरम्यान या ठिकाणी मान्यवर कक्षामध्ये आगमन झालेलं आहे. भिवंडी इंजापूर शहर महानगरपालिकेचे विद्यमान नगरसेवक लायन ऑफ भिवंडी आणि या स्पर्धेचे सर्व सन्माननीय संजयभाई म्हात्रे साहेब. संजयभाई म्हात्रे साहेब आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. डॉक्टर, एक गोष्ट नक्की म्हणावीशी वाटते. शिवसेना हा जो पक्ष आहे त्याची पक्ष बांधणी जे जर तुम्ही बघितली तर शिवसैनिकापासून ते गटप्रमुख म्हणा किंवा शाखा प्रमुख म्हणा, उपविभाग प्रमुख, विभाग प्रमुख, महिला शाखा संघटक, एक जबरदस्त बांधिलकी आणि आपुलकी ठेवून शिवसेना आज काम करीत आहे. आणि म्हणूनच मला ते गाणं आठवतंय, जात गोत्र आणि रक्त अमुचा शिवसेना शिवसेना शिवसेना. जबरदस्त आयोजन. आणि आज मैदानामध्ये आपण बघा, धर्मवीर आनंद दिघे साहेब यांचा फोटो बघितल्यानंतर एक आनंद होतो. म्हणजे शिवसेनेची ठाणे, ठाण्याची शिवसेना ही जी उक्ती आहे सार्थक केलेली आहे. आणि जबरदस्त या स्पर्धेमध्ये जर आपण बघितलं तर एवढं चांगलं आयोजन आहे. जवळपास 8 आमदारांनी भेट घेतली आहे या स्पर्धेची आणि आज सुद्धा खूप मोठ्या संख्येने पाहुणे येणार आहेत. त्यावरनं आपल्याला समजते की आमदार चषक याचा जो वलय आहे तो 4 दिशा नव्हे तर 8 दिशांमध्ये त्याची प्रसिद्धी पोहोचलेली आहे. नक्कीच एक नामांकित स्पर्धा आहे आणि खूप काही चर्चा होते या स्पर्धेची. आणि हे वर्ष 5वं वर्ष आहे. आपण दिंडीगड पाहू शकता सोनालय. आणि महाशिवरात्री दिवस त्यावेळेला इथे फार मोठे उत्सव असतो. अगदी हजारो नव्हे तर लाखोंच्या संख्येने त्या ठिकाणी भाविक जात असतात.
डॉक्टर तुम्ही बघितलं असेल भावेश पवार यांनी बी इंडियनच्या बलस्थानांवर नाकाबंदी केली आज. ते महत्त्वाचं होतं. फलंदाज कोसळले आणि फलंदाजीचे हे जे शेर होते ते चौथ्या षटकामध्ये ढेपाळलेले दिसते. मात्र इथे चित्र बदललंय. धनेशनी 4 षटक 52 धावा आणि गडीबाद झाले ते 5. 4 ओवर 52 रन और 5 विकेट. नया ओवर लेकर अब स्वर्गीय श्याम नाईक स्टैंड की ओर से बॉलिंग की जिम्मेदारी. वेलकम मनोहर तरे, ठाणे जिल्ह्याचे जबरदस्त सूत्रसंचालक, माझे बंधू. आपलं आमदार चषक 2017 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. ठाणे जिल्हा युवा सेना सचिव प्रभुदाजी नाईक यांनी या ठिकाणी धनेश शिरोळला हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. त्याचबरोबर आयोजनाला हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. हेमंतजी गुळवी यांनी सुद्धा हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. तो भावेश पवार 2 ओवर 20 रन और 3 विकेट. नए ओवर की शुरुआत महेश ठाकरे द्वारा लूज बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए केवल गेंद को धकेल दिया था विकेटों के सामने. अपने फॉलो थ्रू में तेज दौड़ लगाते हुए गेंद को रोका था. स्कोर हो चुका है 53 5 विकेटों के नुकसान पर. हमारे जो भी दर्शक सीधे प्रसारण के साथ जुड़े हैं उन सभी को आज रविवार की शाम हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं. चाय का प्याला पीते पीते अगर आप इस मुकाबले को देख रहे हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है. आमदार चषक टॉस बॉक्स में दोनों कैप्टन को रहना है. एनआर बोरपाड़ा के कैप्टन और विहान मित कुमार के कैप्टन. इस बार स्टंप टू स्टंप बॉल थी. जमा ने हरकत लेना चाही थी लेकिन फुटवर्क ने साथ नहीं दिया था. बी इंडियन पिछले 1.5 ओवर से थोड़ा परेशान क्रिकेट खेल रही है. पहले 3 ओवर में उनकी हुकूमत थी लेकिन ओवर नंबर 4 और नंबर 5 की शुरुआत पर थोड़ा सा डगमगाते हुए नजर आ रही है बी इंडियन. अच्छी वापसी धनेश द्वारा की गई है इस मुकाबले में. इस बार इनसाइड आउट खेला है और बॉल सीधी मैदान के बाहर चली जाएगी. 6 रनों के लिए जमा ने कर दिए जमा. 6 रन. उत्कृष्ट टाइमिंग. निशाणी घेऊन धनुष्यबाण वाघाची प्रतिमा फटका खेळला होता. हवेत फटका खेळला होता. डीप कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर आणि स्वीपर कव्हरच्या मध्ये खरं तर क्षेत्ररक्षक होता. ज्या डोक्यावर ना चेंडू 6 धावांसाठी गेला होता. षटकार. 59 रन बने. 59. छह विकेटों के नुकसान पर. अब की बार बराबर से हरकत नहीं ले पाए थे. हालांकि गेंद को खेला है शॉर्ट मिड विकेट की तरफ. जो भी रन आएंगे उनका अब स्वागत किया जाएगा बी इंडियन द्वारा. बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है और मुनाफ और जमा ये दोनों अनुभवी बैट्समैन हैं जो लगभग आज पिछले 11-12 साल से कामयाबी वाला क्रिकेट खेलते आ रहे हैं. अब इनके ऊपर जिम्मेदारी है टीम को कम से कम 70 से 75 के बीच में पहुंचाने की. महेश ठाकरे की अगली गेंद. इस बार मुनाफ बराबर से ले नहीं पाए थे. बल्ले पर एक जोखिम वाला रन था लेकिन जमा ने कॉल अच्छी दी थी. डॉक्टर ये अच्छी बात होती है विकेटों के पीछे की जो कॉल है वो नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज की रहेगी तो लेग बाय अंपायर फारूक बड़ी द्वारा. और विकेटों के सामने का जो कॉल है वो बैट्समैन का रहेगा. अगदी बरोबर. आंतरराष्ट्रीय खेळामध्ये कित्येक वेळा आपण बघितलेलं आहे. खास करून दक्षिण आफ्रिका संघ जो पराभूत झाला होता, कॉलिंग जे झालेलं नव्हतं त्यामुळे हा संघ पराभूत झाला होता. फार महत्वाचं असतं. हाँ ना या तो फिर वेट. यस नो वेट. ठाकरे की अगली गेंद. इस बार थोड़ा सा बल्ले के मुंह को खोलते हुए खेलने का प्रयास था. बॉल जा रही है वहां पर वाइडिश गली की तरफ. बहुत डीप उसे उठाया गया था. हालांकि एक अच्छा ओवर यहां पर मुकम्मल किया है. इस ओवर में 10 रन दिए महेश ठाकरे ने. 5 ओवर की समाप्ति पर पहले बैटिंग करते हुए बी इंडियन का स्कोर हो गया 62. 6 विकेटों के नुकसान पर. धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स. आणि मित्रांनो या ठिकाणी निश्चित संजना जनार्दन चौधरी कमांडो बाईकसाठी त्यांनी 1000 रुपयाचं कुपन फाडलेलं आहे. तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा आहेत. आणि आता कमांडो बाईकचं कुपन फाडण्यासाठी चांगलीच रांग लागलेली आहे कारण थोडेच कुपन या ठिकाणी शिल्लक आहेत आणि कमांडो बाईकवर प्रत्येकाचं नाव असावं. त्या बाईकवर स्वार होण्याची प्रत्येकाची इच्छा आहे. कमांडो बाईक एक स्टायलिश बाईक आहे. आमदार चषक 2017 मध्ये सर्वांचं आकर्षण ठरलेली. आपलं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. डीजे दीपेश यांना पण पाहू शकता. आगळा वेगळा अंदाज. आणि हे श्री समर्थ मंडप डेकोरेटर्स चेतन पवार आणि सचिन पवार नामांकित जोडी आहे. डेकोरेशन क्षेत्रातली. त्याला क्रिकेटमधली सुद्धा एक नामांकित जोडी आहे.
आणि आमचा कॉमेंट्री बॉक्स माझ्या उजव्या बाजूला भिवंडी टेनिस क्रिकेट .inचे शिल्पकार आणि आमचे सहकारी समालोचक संदेश पाटील भिवंडीकर, डाव्या बाजूला साहेबा मोमीन, त्यानंतर हरिजी पंड्या स्वीट व्हॉइस ऑफ मुंबई. आमच्या पाठीमागे जर बघितलं आपण तर एक युवा समालोचक ज्यांना खूपच भविष्यकाळ चांगला असावा, कारण अजय खरच, सुभाष धुमाल. एनआर के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है. एनआर बोरपाड़ा के कैप्टन आणि निश्चितच तनिष मनोज पाटील यांनी सुद्धा 1000 रुपयाचं हे कुपन कमांडो बाईक साठी. पर 6. तब आखिरी ओवर करने की जिम्मेदारी हेमंत हरड़ पर. हेमंत हरड़ ने अपना पहला ओवर स्वर्गीय श्याम नाइक गैलरी की ओर से किया था और अगला ओवर जो है अब आर के पाटिल स्टैंड की ओर से करेंगे. पर 6 और बी इंडियन अगर यहां से स्कोर को 75 तक ले जाती है तो बहुत अच्छी बात होगी. जमा सामना करेंगे हेमंत हरड़ का. हरड़ की पहली गेंद इस बार बल्ले का मोटा सिरा और विकेट कीपर अजय भोईर के ऊपर से मैदान के बाहर छूमंतर 4 रनों के लिए. आमदार आयोजन रुपेश दादांच्या नावानं उद्धव साहेब उद्घाटक एकनाथ शिंदे साहेब जोडीला. विकेट कीपर अजय की जो हाइट है काफी छोटी है और इसके लिए उन्होंने जंप जरूर किया था. उनके ऊपर से बॉल चली गई और ये रन इसका स्वागत किया जाएगा. ऐसे रन जब आते हैं जब आपका नसीब अच्छा हो और इसीलिए कहते हैं लक्स कोजी अपना लक पहन के चलो. धावा मिळणे गरजेचं असतं. वेलकम मॉन्डे नक्कीच म्हणता येईल बी इंडियन संघासाठी. 66 पर 6 और छठा ओवर 6 का जादू इस बार जमा ने उठा दिया है और भावेश पवार क्या बेहतरीन कैच लिया है. 6 रनों की बचत और जमा आउट. प्रकाश पाटील संजय मात्रेंच्या जोडीला. उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे संजय मात्रेंच्या जोडीला. थोडासा पुढे आला होता खरं तर भावेश पवार लॉंग ऑन सीमारेषेत थोडासा पुढे आला होता. त्यानं थोडीशी जंप घेऊन झेल घ्यावा लागला. मग झेल घेतलेला आहे फार महत्वाचं आहे. पाहू शकता आपण दुसऱ्या अँगल मधून फुल स्ट्रेच आप देखें कैप्टन ने स्वयं अपने आप को किया. अब एक कैप्टन से आप इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं. जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ काम करता है वैसे भावेश पवार एज ए कैप्टन धनेश के लिए काम कर रहे हैं. बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, प्लानिंग, कैप्टनशिप हर विभाग में एक संपूर्ण क्रिकेटर कहा जाएगा भावेश पवार. या ठिकाणी हार्दिक शुभेच्छा येतात. अजा नाही तर मजा नाही. एक उत्कृष्ट टेमघर गावचे उत्कृष्ट गायक अजय चौधरी यांनी या स्पर्धेसाठी हार्दिक शुभेच्छा दिल्या. धन्यवाद अजय चौधरी. 16 पर आउट हुए जमा और अब उजैर नए बैट्समैन. स्ट्राइक पर है मुनाफ. इस बार ब्लॉक होल में आती हुई गेंद मुनाफ ने छोटी बैकलिफ्ट से यहां पर रन को पूरा किया है लेकिन वहां पर देखना होगा दूसरा नहीं बन पाएगा. स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जाकर 67 रन 6 विकेटों के नुकसान पर. 67 पर 6. कहां पहले 3 ओवर में 40 रन बने थे और रनों का एक सैलाब सा आ गया था. वहीं पर आखिरी 3 ओवर में रन बनाने के लिए जूझना पड़ा बी इंडियन को. अब नए बैट्समैन है कैप्टन हुजैर. 3 गेंदें बची और 3 गेंदों में बी इंडियन कितने रन बनाएगी इसके ऊपर सभी की नजरें हैं. धनेश ने बहुत अच्छी वापसी की है भावेश पवार के हैट्रिक के बाद. इस बार स्ट्रेट ड्राइव. गेंद और बल्ले का जब संपर्क हुआ तो जो आवाज निकली थी बिल्कुल दमदार आवाज थी. रॉजर ड्रैगो का साउंड भी शर्मा जाए ऐसी आवाज. और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68 पर 6. अतिशय जोरदार प्रहार केला होता. करारा ड्राईव्ह होता मात्र चांगला फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू अडवला होतोय आणि फक्त एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय. ताकदवर फटका होता हुजेरेचा. स्टीरियोफोनिक आवाज निकली थी और अब स्ट्राइक पर है मुनाफ. हुजैर ने पहला रन बना लिया है. और इसके साथ ही देखिए नजर हटी, दुर्घटना घटी. मुनाफ के फुटवर्क को वहां पर चुनौती दी और एक बड़ा विकेट. कुल मिलाकर ये विकेट नंबर 8.
आता रिप्लेमध्ये आपण कशा प्रकारे बाद झालेला आहे. शफल क्रॉस यष्टीच्या बाहेर आला होता. यष्टी पूर्ण मोकळ्या ठेवल्या होत्या. घराचं दार उघडं ठेवलेलं आहे आणि चोरी होणारच आहे. नजरहटी दुर्घटना घटी. डॉक्टर इस पारी में टोटल 5 चौके लगे हैं और 4 सिक्सर लगे हैं अब तक. और ये जो स्ट्रोक्स आए उसमें अधिकांश जो रन थे वो पहले 3 ओवरों के दौरान आए हैं. आखिरी 3 ओवरों में धनेश ने भी अपने अंदर के विजेता को जगाया और वापसी की है, जो इस मैच को इस वक्त बैलेंस वाली स्थिति में ला चुका है. इस बार अवे फ्रॉम द बॉडी खेला था, कम से कम 1 रन वहां पर, और 1 से ज्यादा मिलना मुमकिन नहीं होगा. 1 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69 पर, और 6 ओवर की समाप्ति पर यहां पर 69 रन बने हैं. 69 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स. मुकाबला जीतने के लिए 70 रन धनेश 11 को बनाने होंगे फाइनल में पहुंचने के लिए. धन्यवाद हरीश पंड्या, धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स. आइए दोस्तों, दूसरे सेमीफाइनल का टॉस होने जा रहा है. इस वक्त दोनों कैप्टन मेरे साथ खड़े हैं और हमसे जुड़ने जा रही है भिवंडी क्रिकेट की बाहर को एंकर आरती गुप्ता. वेलकम आरती. थैंक यू सर. बहुत ही खास लोगों की खास सी ट्रॉफी, इस आमदार ट्रॉफी के फाइनल डे में हम पहुंच चुके हैं. और अभी तक आपने देखे यहाँ के बहुत इंटरेस्टिंग क्वार्टर फाइनल एंड फर्स्ट सेमीफाइनल की फर्स्ट इनिंग जो कि हो रही है बी इंडियन और धनेश स्पोर्ट्स के बीच में. और लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. जैसे जैसे शाम बढ़ेगी, शाम की खूबसूरती, इंटरेस्ट एंड आप सभी व्यूअर्स, प्लेयर्स और हम सभी की दिल की धड़कन भी बढ़ती ही जाएगी. तो जुड़े रहिए हम सभी के साथ. और यहाँ मैं पहुंच चुकी हूँ टॉस बॉक्स में, जहां पे दूसरे सेमीफाइनल के दोनों कैप्टन मौजूद हैं और मेरे को एंकर सिद्दीक भावे सर. आई वुड लाइक टू से थैंक्स, वेल, congratulations to Mr. Sanjay Matre and Rupesh Matre ji for the successful organization of this Andhra Trophy. I welcome all the chief guests over here. Welcome all the commentators, umpires and all the players. Thank you. आइए दोस्तों, टॉस होने जा रहा है. हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओम साई ऑटो किंग के किंग डीलर सुरेंद्र पाटिल और साथ में अरुण भोईर. ये सिक्का मेरे पास है. 6 ओवर का मुकाबला है. सेमीफाइनल हो रहा है. एनआर बनाम विहान मित कुमार, एक तरफ महिंद्रा स्पोर्ट और एक तरफ आपला आमदार. आपला आमदार विहान मित कुमार ने टॉस जीता. अनेक अनेक धन्यवाद सुरेंद्र जी. ये गिफ्ट हैम्पर आपको देना है. बोलपाड़ा टीम के कैप्टन ने, सॉरी, विहान मीत कुमार के कैप्टन ने जीत लिया इस टॉस को. अनेक अनेक धन्यवाद. कुमार, ये बताइए, आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहिए? हम पहले फील्डिंग करेंगे. आपने फील्डिंग को क्यों चूज किया? आपको नहीं लगता चेस करनी मुश्किल होगी? नहीं, फील्डिंग इसलिए कि इससे पहले मैच में हम लोग चेस आसानी से किए. ये बॉलिंग भी अच्छी है और बैटिंग हमारे पास ज़्यादा, बैटिंग की लाइनअप ज़्यादा है, उस हिसाब से चेस करना हमको आसान होगा. दूसरी टीम को कितने लक्ष्य तक रोकने का आप तैयारी करके उतर रहे हैं इस मैदान में? 6 ओवर का मैच हम 50 से 60 के बीच में रोकने की कोशिश करेंगे. ये बताइए कुमार, गेंदबाजी का डिपेंड, आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, किस गेंदबाज पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि वो एनआर के बल्लेबाजों को रोके? जैसे श्याम है, महेश है और बंडी है, ये हमारे तीनों गेंदबाज अच्छे हैं. कभी कैसा रहता है, कोई दिन खराब रहता है, एक आध मैच खराब रहती है. एक मैच का ये रहता है कि फॉर्म में आने के लिए समझ लीजिए यही सेमीफाइनल का मैच है, कोई भी बॉलर हमारे चल जाए. ये बताइए कि ट्रम्प कार्ड फिर से श्याम चौधरी रहेंगे? जी हाँ. ऑल द बेस्ट. इस वक्त जहीर हमसे जुड़ते हुए. जहीर, ये बताइए, टॉस आपकी नज़र में इम्पोर्टेंट था और जीतते तो क्या करते? सर हम लोग तो बैटिंग ही करने वाले थे. बैटिंग करने के लिए आप उतर ही रहे हैं एज यूजुअल. उन्होंने बोला कि वो बॉलिंग करेंगे. कितने का लक्ष्य लेके उतर रहे हैं आप मैदान में? हम 70 प्लस. जहीर, ये बताइए कि एमएलए ट्रॉफी में अब तक जो आपने क्रिकेट खेला है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? काफ़ी अच्छा रहा और पिच काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मदद मिल रही है बॉलर और बैटिंग दोनों के लिए. ये बताइए कि पिछला जो विनिंग कॉम्बिनेशन था उसमें कोई चेंजेस हैं? नहीं, कोई चेंजेस नहीं, वही टीम में पुरानी है. अच्छा खेलेंगे और अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा पब्लिक को. बिंदास का फॉर्म कहीं ना कहीं कम चल रहा है, उससे आप चिंतित हैं? नहीं, कोई चिंतित नहीं है. वो कभी भी बड़ा बैट्समैन कभी भी खुल के मार सकता है. हर बॉलर को कोई भी बॉलर है मार सकता है वो. तो क्या हम उम्मीद करें कि एनआर तीसरे कप की तरफ कदम रख रही है? हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर आप देखेंगे अगले कप के लिए. All the best. The news from the toss box is Vihan Mit Kumar won the toss. They decided to bowl first.
is back to the commentary box. All the best to the captains of both the teams, and I'm heading towards the pavilion box जहाँ पे धनेश के प्लेयर्स तैयार बैठे हुए हैं मैदान में उतरने के लिए। थैंक यू सिद्दीक भाई। तो मैच की शुरुआत हो रही है। बी इंडियन ने इस वक्त बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, हमने देखा। थँक्यू प्रतीक गोराडकर यांनी नक्कीच लकी ड्रॉच्या माध्यमातून या कमांडो बाईकवर बसण्याची इच्छा व्यक्त केलेली आहे। बेस्ट ऑफ लक ऑल कॉम्पिटिटर्स, सर्वांचं खूप खूप अभिनंदन। आमदार चषक 2017 मध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे, वेलकम सुस्वागतम। व्यासपीठावर उपस्थित भादवडगावचे सामाजिक कार्यकर्ते भगवान म्हात्रे यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे। मी अरुण सरांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण सन्माननीय भगवान म्हात्रे यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे, वेलकम सुस्वागतम। आमदार चषक 2017 मध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। सन्माननीय आमदार उपेंद्रदा म्हात्रे, लायन ऑफ भिवंडी, डॅशिंग नगरसेवक संजयभाई म्हात्रे, महेंद्र स्पोर्ट क्लब, महेंद्र समाज कल्याणकारी संस्था तसेच गावदेवी 40+ ग्रामस्थ मंडळ भादवड टेमगरवाड यांच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे, वेलकम सुस्वागतम। मनोहर तरे, सर्व रसिक प्रेक्षकांना विनंती करेन की सर्वांनी पॅव्हिलियन मध्ये बसायचंय। ज्या वेळेला पॅव्हिलियन फुल होईल त्यानंतर आपण इतरस्त निश्चित बसू शकता, पण पॅव्हिलियन मध्ये भरपूर जागा आहे, आपण प्लीज पॅव्हिलियन मध्ये बसायचंय। आणि रसिक प्रेक्षकांना सुवर्ण संधी किंवा क्रीडांगणाच्या कोणत्याही दिशेला जर आपण झेल पकडलात क्रीडांगणाच्या बाहेर, तर निश्चितच स्वर्गीय स्वप्नील कबीर नाईक यांच्या स्मरणार्थ प्रेमनाथ सकाराम नाईक, माजी अध्यक्ष ठाणे पालघर प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढीच्या अध्यक्षपदी विराजमान झालेले प्रेमनाथ मामा यांच्याकडून 500 रुपयांचं पारितोषिक आहे। मी प्रथम रसिक प्रेक्षकांना विनंती करेन, आपला हार्दिक स्वागत करतोय, पण आपण प्रथम पॅव्हिलियनचा आनंद घ्यायचा आहे। ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद रवींद्र तरे सर। आर के पाटील स्टँड मध्ये जे प्रेक्षक बसलेले आहेत त्यांच्यासाठी एक मेजवानी आहे। 2000 रुपयाचं कॅश साठी प्राइस ठेवण्यात आलेलं आहे। निलेश जोशी आणि प्रवीण गुलवे यांच्या माध्यमातून 2000चं पारितोषिक आहे आर के पाटील स्टँड मध्ये, आणि प्रेमनाथ नाईक यांच्याकडून 500 रुपये, म्हणजे तब्बल आर के पाटील स्टँड मध्ये 2500 रुपयाचं पारितोषिक आहे। श्याम नाईक गॅलरी मध्ये 500 रुपयाचं पारितोषिक। तो दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर, स्ट्राइक पर है कुमार, नॉन स्ट्राइक पर शेखर, गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं साइबान फकी। कल इन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी साइबान फकी ने। और एक चीज तो है यहाँ पर सत्तर रनों की चुनौती धनेश 11 कुक्से के सामने फाइनल में पहुंचने के लिए रखी है। बी इंडियन ने सलामी जोड़ी बायात के बैट्समैन कुमार और उनके साथ शेखर दड़वी, एक स्थापित सलामी जोड़ी है धनेश 11 की। बिल्कुल 70 रनों की चुनौती साइबान फकी, पहली गेंद लेके कुमार के लिए। पहली गेंद लॉफ किया कुमार ने, गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। कमाल के खिलाड़ी है शायद ये, पहली गेंद और किसी ने शायद सोचा नहीं होगा कि इतना बड़ा शॉट वो खेलेंगे। शायद साइबान फकी ने भी सोचा नहीं होगा कि पहली गेंद पर ऐसा प्रहार करेंगे कुमार। फुल स्विंग ऑफ द बैट, 6 रन। बिल्कुल बहुत अच्छी शुरुआत हम यहाँ पर कह सकते हैं। जिस तरीके से हमने देखा अजय कि पहली गेंद ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी, ये देखिए बिल्कुल, और कुमार ने पहली गेंद पे 6 रन हासिल की। सर इसे कहते हैं सेमीफाइनल की तैयारी। पहली बॉल पे इन्होंने बाउंड्री लगा के दिखा दिया धनेश ने कि वो सेमीफाइनल के लिए बिल्कुल तैयार होकर उतरे इस मैदान में। निश्चित रूप से धनेश 11 पहली हमेशा गेंद पर सिक्सर लगा वहां पर कुमार। इस बीच अच्छी गेंद थी, बैटफुट पे चले गया, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेल दिया। गेंद जा रही है इस वक्त पॉइंट बाउंड्री की ओर, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। क्या बात है, शाहिद खान बड़े मैच के खिलाड़ी है कुमार, जब भी मैच बड़ा रहता है इस तरह की यहाँ धनेश के प्लेयर्स की उम्मीदें बढ़ती ही जा रही है। जिस तरीके से यहाँ ग्राउंड में बाउंड्री पे बाउंड्री लग रही है। पहले गेंद पे सिक्सर, उसके बाद चौका, मतलब 2 गेंदों पे 10 रन। यहाँ पर हम कहेंगे अच्छी शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर, जिस तरीके की शुरुआत की जरूरत थी धनेश कुक्से को। कुमार
साहिबान इस बीच अगेन ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर रखा था अंपायर फारूक बर्डी का इशारा वाइड, 1 रन और स्कोर में बढ़ेगा 11 रन। और एक चीज तो है यहाँ पर अजय, जिस तरीके से खेल चल रहा है, हालांकि 70 रनों की चुनौती है, लेकिन बी इंडियन कभी भी कम बैक कर सकती है। कल हमने देखा मराठा पंजाब के सामने जब मतीन ने पहले ओवर में 28 रन खर्च किए थे, 4 ओवर में 30 रन चाहिए थे, उसके बाद जो गेंदबाजी हुई बहुत ही बेहतरीन। साहिबान फिर से इस बीच ये गेंद ज्यादा बाहर, इस बार फिर से वाइड, मतलब 2 गेंदों में अब 12 रन। थोड़ा सा दबाव अब गेंदबाज पे बढ़ता हुआ जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है। जी निश्चित रूप से दबाव तो नजर आ रहा है साफ तौर पर, क्योंकि पहली 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट्स खेले वहां पर कुमार ने। अब थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश हो रही है गेंदबाज साहिबान फकी की। बिल्कुल, ये पड़ने वाली 400वीं गेंद थी जो वाइड थी। सारा लेखा जोखा साहिबा मोमिन बता रहे हैं, मतलब कितने वाइड गेंद गेंदबाज ने की है इस ट्रॉफी में। अगर हम देखते हैं अजय गरत, साहिबान इस बीच फिर से बहुत बढ़िया गेंद, फुल लेन की गेंद थी वहां पर, कारपेट के सहारे खेला, 1 ही रन। या ठिकाणी नक्कीच रसिक प्रेक्षकांना सुवर्ण संधी आहे आरके स्टँड मध्ये, आरके पाटील स्टँड मध्ये आता आपण झेल पकडता रुपये 2000 कॅचेस साठी आहेत सन्मान्य उद्योगपती निलेश जोशी आणि प्रवीण गुळे यांच्यातून, तसेच प्रेमनाथ नाईक यांच्या पाचशे 2500 रुपये रसिक प्रेक्षकांसाठी आणि फक्त आरके पाटील स्टँड साठी हे 2000 असतील, हे लक्षात घ्या, बाकी सर्वत्र 500 रुपये। अब स्ट्राइक पर है शेखर, साहिबान फकी महंगे साबित होते हुए अपने पहली ओवर में 13 रन यहाँ पर। इस बीच गेंद फिर से बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, 1 रन स्कोर में बढ़ता हुआ, 14 रन यहाँ पर। चांगली सुरुवात बघायला मिळते, 14 धावा झालेल्या आहेत, कुठल्या प्रकारचा गडी बाद झालेला नाहीये। साहिबान फुल टॉस गेंद खेलना चाहते थे, वहां पर एलिवेशन नहीं बना स्ट्रोक के पीछे, 1 ही रन इस वक्त स्कोर में बढ़ता हुआ, स्कोर इस 1 रन से बढ़ता हुआ 15 रन। बहुत अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं इस वक्त अजय गरत 15 विदाउट लॉस दिनेश कुक से। पहिल्या षटकाचा खेळ चालू असताना धनेश 11 संघाची एक 70 धावांचा पाठलाग करत असताना एक मजबूत सुरुवात म्हणावी लागेल, कुठल्या प्रकारचा गडी बाद झाला नाहीये। जर अशाच प्रकारची जर कंटिन्युटी ठेवली तर नक्कीच धनेश 11 हा संघ विजय समित जाईल। इस बीच ये गेंद फिर से वहां पर केवल पुश किया, आसानी से 1 रन पूरा होता हुआ, तो हम कह सकते हैं बहुत अच्छी शुरुआत, बिल्कुल पॉजिटिव स्टार्ट यहाँ पर दर्शन। 1 ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर रन बने हैं 16। धनेश थँक्यू कमेंट्री बॉक्स। इस्ताक मोमीन आणि इरफान मोमीन यांनी नक्कीच युनायटेड स्टेट अमेरिकेतील ही कमांडो बाईकवर बसण्याची इच्छा व्यक्त केलेली आहे। 2 कुपन हे कमांडो बाईक साठी फाडलेले आहेत आणि आपण सुद्धा ही संधी गमावू नका, अजून वेळ आहे, थोड्याच कुपन शिल्लक आहेत। या कमांडो बाईकवर बसायचं असेल तर त्वरित या आणि आपलं नाव रजिस्टर करा। थँक्यू। हमदार चषक 2017 मध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे, वेलकम, सुस्वागतम। ओ टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू मनोहर तरे। तो दूसरी बॉल लेकर आ रहे हैं बी इंडियन के सबसे अच्छे गेंदबाज इस वक्त उजैर। इस गेंदबाज पे काफ़ी कुछ डिपेंड रहता है दर्शन बी इंडियन का, क्योंकि हम एक सालों से देख रहे हैं कि बी इंडियन का जो चित्र है जीत का, वो उजैर की गेंदबाजी के आजू बाजू घूमता है। क्योंकि कल भी हमने देखा जो उजैर ने पहले ओवर में मजीद ने 28 जब दिए, उसके बाद अच्छी गेंदबाजी करके मैच में वापस लाया, उसके बाद साहिबान ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन आज साहिबान थोड़े से महंगे साबित हुए। अतिशय बरोबर, शाहिद शेख उजेर हा बी इंडियन संघाचा अतिशय प्रमुख गोलंदाज आहे, त्यांनी बरेचसे सामने आपल्या गोलंदाजाने जिंकून दिलेत। या आमदार चषकाचा विचार केला असता तरी मागच्या सर्व सामन्यामध्ये त्यांनी चांगली गोलंदाजी केली आणि त्यांच्या गोलंदाजी ही टर्निंग पॉइंट ठरते ही संघासाठी। स्ट्राइक पर है शेखर, उजैर राइट आर्म और विकेट से बिल्कुल तैयार। शेखर दलवी इनका सामना करेंगे। पहली फुल टॉस गेंद लॉफ किया, गैप में कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। अतिशय सुरेख फटका, अतिशय जोरदार प्रहार केला, लॉफ केला होता चेंडूला, पायांच्या समोरून फुल टॉस चेंडूला, चेंडू आता मिड विकेटच्या बाहेरच्या आगावर.
आखिरी गेंद। दर्शन ऐसा कहते हैं कि ओवर की पहली गेंद और आखिरी गेंद आपको सबसे अच्छी करनी होती है ओवर की। आता मात्र शाहिद खान उजेर याच्यावर देखील प्रहार केला जातो, सुरुवात केली जाते आणि हा प्रहार हा प्रेशर जमवण्याचा प्रयत्न केला तो धनेशच्या संघाकडून. उजैर पहली गेंद पे 4 रन यहाँ पर खर्च किए। इस बीच बहुत अच्छी गेंद, वहां पर स्विंग करना चाहते थे, पूरी तरह चकमा खाया। गेंद विकेट कीपर मतीन के स्थानों में डॉट के रूप में। आता मात्र शाहिद खान मी एकच म्हणेन, शेखरकडे जी क्षमता आहे भटकेबाजी खेळण्याची बघू शकता कशा प्रकारे क्रॉस बॅटेड फटका खेळण्याचा प्रयत्न करतात, कारण की शेखर हा समोरच्या सरळ बॅटने देखील चांगली फटकेबाजी करतोय. मात्र चेंडू ज्या प्रकारे उजेराने हाचा उचललेला होता त्या प्रकारे आता फटकेबाजी झाली नाहीये. बिल्कुल एक चीज है दर्शन, आपने देखा पिछला मुकाबला महिंद्रा का जो हर आखिरी ओवर में आखिरी गेंद पर सिक्सर लगा, मतलब 4 गेंदों पे जो आखिरी गेंद पर 4 सिक्सर लगे, वहीं से महिंद्रा हार गई। इस बीच बहुत बेहतरीन गेंद, बहुत बेहतरीन गेंद दोनों पैरों के बीच से चली गई, वहां पर समझ ही नहीं पाए शेखर दलवी, डॉट गेंद। आतापर्यंत टाकण्यात आलेला सर्वोत्कृष्ट चेंडू म्हणावा लागेल पहिल्या षटकाचा आणि या षटकाचा विचार केला असता. सुरेख गोलंदाजी होते आणि एक चांगला गोलंदाज तोच असतो की जो पहिल्या चेंडूवरती मोठा फटका लागल्यानंतर कमबॅक करतो आणि नंतर ते चेंडू तो निर्धाव काढतो किंवा फलंदाजाला संधी देत नाहीये. खरोखरच उजेर मी म्हटलं तर संघाचा प्रमुख गोलंदाज आहे आणि प्रमुख गोलंदाज सारखीच गोलंदाजी करतोय. बिल्कुल पहली गेंद पे चौका लगने के बाद अच्छा हम कमबैक कहेंगे वहां पर। इस चौके की मदद से स्कोर अगर हम देखते हैं तो 20 रन हुए हैं। और एक चीज़ तो ज़रूर है यहाँ पर कि जिस तरीके से खेल हो रहा है कहीं ना कहीं ये मुकाबला बहुत ही रंग ला सकता है आमदार चषक में। उजैर इस बीच लोअर फुल टॉस गेंद थी, कारपेट के सहारे खेला, बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर मेराज थे, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर इस वक्त 21 रन। अच्छा वापसी, अगर एक अच्छे गेंदबाज आपका जब पहला गेंदबाज अगर खराब गेंदबाजी करता है तो दूसरे गेंदबाज उसको जब कवर करता है तो टीम का कॉन्फिडेंट यहाँ पर ज़रूर बढ़ता है दर्शन, क्योंकि जब आपका पहला गेंदबाज पिटाई वहाँ पर उसकी हो जाती है, दूसरा गेंदबाज भी खराब गेंदबाजी करता है, जब आप चेसिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो फील्डर्स है, जो कैप्टन है, वो भी ढीले पड़ जाते हैं, सोच विचार चलता है, थोड़ी सी टेंशन नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि उजैर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत कर चुके हैं। अतिशय बरोबर, कारण की पहिल्या चेंडूवरती चौकार आणि दुसऱ्या चेंडूवरती चेंडू डॉट, तिसऱ्या चेंडू डॉट आणि चौथ्या चेंडूवरती 1 धाव, म्हणजे 4 चेंडू झाले शाहिद खानाने 5 धावा. बघू शकता पहिल्या षटकामध्ये 16 धावा कुठल्या होत्या इथे, 14 धावा कुठल्या होत्या इथे. त्यानंतर एक चांगली गोलंदाजी करताना उजैर. आता डावखुरा एक शैलीदार फलंदाज आहे, चांगली फलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी कुमार. उजैर टू कुमार, इस बीच गेंद पॉइंट पे पुश किया, गैप में हवा में, बढ़िया कैच, बड़ी विकेट कुमार की गिरती हुई, बाबा ने कैच को समाप्त किया। थँक्यू डीजे. मच्छिंद्र पाटील मामा आपलं हार्दिक स्वागत आहे. तुषार म्हात्रे आपलं कुमार. सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे. विनोद म्हात्रे आपलं सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. कुमार ने आउट होने से पहले 12 रन बनाए यहाँ पर। पहली विकेट धनेश कुकसे की गिरती हुई। आणि शाहिद खान रणनीती चेंज केलेली आहे. अपेक्षा होती की जयेश पाटील येतील, मात्र रणनीती चेंज करून पुन्हा एकदा डावखुरा फलंदाजा विकी म्हात्रे यांना बोलण्यात आलेलं आहे. विकी म्हात्रे हा देखील एक अटॅकिंग फलंदाज आहे, ज्याच्याकडे मोठे फटकेबाजी खेळण्याची क्षमता भरपूर आहे आणि संघाचा संघनायक आहे. बिल्कुल 12 रन बनाए कुमार ने वहां पर आउट होने से पहले। एक चीज तो है, पहली विकेट यहाँ पर गवाई। आर.के. पाटिल स्टैंड में अगर कोई भी दर्शक कैच पकड़ता है तो 2000 रुपये, और लेट श्याम नाइक गैलरी में अगर कोई दर्शक कैच पकड़ता है तो 500 रुपये। अब स्ट्राइक पर है विकी म्हात्रे, बहुत अच्छी ओवर हम कहेंगे। पहली गेंद पे चौका लगने के बाद अगर आप बाकी की 4 गेंदों को अगर देखते हैं हम दर्शन नाइक, तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ 1 रन दिया और 1 सफलता, मतलब बी इंडियन मिसाइल अब चलता हुआ। इस बीच एक गेंद, वहां पर देखना है क्या कुछ हुआ है। व्हाइट बॉल, एक्स्ट्रा रन। एक्स्ट्रा रन बहुत महंगे रहते हैं दर्शन, जब आप के सामने एक चेसिंग में खासकर यहाँ पर विलन का रोल अदा करते हैं. अतिशय बरोबर. अतिरिक्त धावा आहे कुठेतरी, या एक एक दोन धावा देखील शेवटच्या क्षणी खूप माग टाकतात. आपल्या टीव्ही स्क्रीनवरती बघू शकता. चांगलं प्रक्षेपणाचं काम करते ते प्रिन्स मूवीज, पूर्ण कमिटी आणि पूर्ण टीम. बिल्कुल, प्रिंस मूवीज का लाजवाब टेलीकास्ट हमने देखा वाली ट्रॉफी में और आमदा ट्रॉफी में. बेहतरीन फुलटॉस गेंद, केवल पुश किया, वहां पर दिशा दी है. 1 रन बना, 1 ही रन.
आरती अपना माइक बंद कीजिए प्लीज। थैंक यू। मैसेज डायरेक्ट जा रहा है। तो 2 ओवर की समाप्ति, 23 रन। आमदार चषक 2017 मध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. हजारोच्या संख्येने जे रसिक प्रेक्षक आमदार चषक 2017 मध्ये आलेले आहेत, त्याचबरोबर लाईव्ह प्रेक्षेपणाच्या माध्यमातून आमदार चषकाचा आनंद घेत आहेत. भिवंडीतील एकता, अखंडता आणि एकात्मतेचा संदेश देणाऱ्या क्रिकेटच्या महासंग्रामामध्ये आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. अनुसूचित जमाती कल्याण समिती महाराष्ट्र राज्याचे समिती प्रमुख, भिवंडी पूर्वचे सन्माननीय आमदार रुपेशदादा म्हात्रे, द लायन ऑफ भिवंडी, नगरसेवक भिवंडी शहर महानगरपालिका संजयभाई म्हात्रे, त्याचबरोबर महेंद्र स्पोर्ट्स, मयुरेश एंटरप्राइजेस, गावदेवी 40+ या सर्वांच्या वतीने आपलं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. आणि मोठ्या प्रमाणात आता निश्चितच कमांडो बाईकला लाईक करतायत. भरपूर आता मला वाटतं रांग लागते या कुपनसाठी, कारण त्यांना माहिती आहे काही कुपन शिल्लक आहेत. आपण आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर या मित्राचा तुषार जीवन म्हात्रे, बाळकृष्ण गणपत माळी आणि भूमिका एंटरप्राइजेस निश्चितच मॅचचा आनंद घेत आहे. कारोलीवरून दिनेश नाईक एक चांगले माझे मित्र देखील आहेत. आमदार चषक 2017 साठी त्यावेळी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. धन्यवाद. दोन षटकांचा खेळ समाप्त झालेला आहे. 2 षटकाच्या समाप्तीत धावसंख्या आपण बघू शकता. धावफलकावरती 23 धावा आहेत, 1 गडी बाद झालेला आहे. आता मात्र फुलटच चेंडू मारण्याचा प्रयत्न होता, मात्र कॉलिंग होत नाहीये आणि अशा प्रकारे विकी म्हात्रे मात्र आता जाऊन नॉन स्ट्रायकर एंडला पोहोचतोय. लक्ष नव्हतं विकी म्हात्रेचं शेखरच्या कॉलिंग वरती. हालांकि देखा जाए तो उनको ये लगा कि गेंद विकेट कीपर के हाथ में है, वो अपना विकेट बचाना चाह रहे थे. पैर उन्होंने खींच लिया था क्रीज में, लेकिन गेंद विकेट कीपर के हाथ में नहीं थे. आखिरकार 1 रन पूरा किया. रन संख्या अब 24, अभी भी 46 रन चाहिए. काफी संघर्ष बचा है दर्शन इस मैच में अभी भी. खरोखरच अजूनही खूप क्रिकेट शिल्लक आहे या सामन्यामध्ये. मित्रांनो, आपण पाहतात आमदार चषक 2017 उपस्थित तमाम प्रेक्षकांचा आणि मंचावर उपस्थित पाहुण्यांचा पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत या आमदार चषक 2017 मध्ये. साहेबान शेखरसाठी आता मात्र सुंदररित्या सरळ बॅटने खेळायला चेंडू जातो आरके गॅलरी मध्ये आणि षटकार. तो षटकार तर मी तर म्हणेन समोरच शिवाजी महाराजांना सलामी असावी. खरोखर त्यांच्या पायाची जाऊन चेंडू पडला होता आणि जणू काय तो महाराजांना मुजराच असावा. चषकाचं आयोजन केलंय टेम घर पाड्याला गाजतय नाव गाजतय गाजतय नाव गाजतय नाव या ठिकाणी दिनेश सुरेश माघे यांनी सुद्धा कमांडर बाईकवर बसण्याची इच्छा व्यक्त केलेली आहे. सापेगाव. धन्यवाद. बेस्ट ऑफ लक ऑल कॉम्पिटिटर्स. आता मात्र साहेबान फक्की साहेबांच्या पहिल्या षटकामध्ये देखील धावा जमा केल्या होत्या अजय घरत आणि दुसऱ्या षटकामध्ये तशाच प्रकारे सुरुवात झालेली आहे. आणि शेखर खूप महत्वाची भूमिका निभावतो या सामन्यामध्ये. आपण बघू शकता अतिशय चांगली फलंदाजी करतोय शेखर आपल्या अति महत्वाच्या सामन्यामध्ये. आता मात्र चेंडूला सुंदरता ड्राईव्ह केलेला एक मिड विकेट क्षेत्ररक्षक येतोय. एकाच धावावरती समाधान मानावं लागेल. एका अंकाने धावसंख्या वाढते ती 31. एक चांगल्या फिगर मध्ये धावसंख्या बघू शकतो अजय घरत. निश्चित रूप से. और धनेश 11 ने अपनी जो रणनीति है उसको कहीं ना कहीं बदला है. जिस तरह से विक्की म्हात्रे को तीसरे नंबर पर भेजा गया है, हवाएं बह रही है. दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन शायद बनाकर रखना चाहते हैं. कुमार बाएं हाथ के बैट्समैन आउट हुए थे, तो बाएं हाथ के बैट्समैन को ही उन्होंने ऊपर भेजा है. कुमाराने चांगली सुरुवात करून दिली होती. एक षटकार आणि एक चौकार मारून आपल्या संघाने 12 अशा मोलाच्या धावा जमा केल्या. आणि कुमार ज्या प्रकारे डावखुरा फलंदाज चांगली फलंदाजी करतो तिथेच कुठेतरी रणनीती चेंज केली आणि कुमारच्या जागी पुन्हा एकदा डावखुरा फलंदाज विक्की म्हात्रे यांना पाठवण्यात आलेला आहे. नक्कीच या ठिकाणी नैतिक मच्छिंद्र पाटील या छोट्या चिमुकल्याने सुद्धा कमांडो बाईकवर बसण्याची इच्छा व्यक्त केलेली आहे. खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. आर के गॅलरी एंड मध्ये जे प्रेक्षक बसले त्यांच्यासाठी एक सुवर्ण संधी आहे. निलेश जोशी आणि प्रवीण गुळवी यांनी हे पारितोषिक ठेवले. कुठल्याही प्रेक्षकांनी जर झेल पकडला तर त्यांना रोख रक्कम 2000 रुपये. तसेच श्यामनाई गॅलरी एंड मध्ये जर कुठल्याही प्रेक्षकांनी झेल पकडला तर त्यांच्या देखील साठी ही सुवर्ण संधी राहणार आहे. आणि सन्माननीय प्रेमनाथ नाईक यांनी देखील 500 रुपयाचं रोख पारितोषिक ठेवण्यात आलेले आहे. धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स. आणि मित्रांनो, संजयभाई म्हात्रे यांच्यासाठी खूपच मेसेज येतात.
पण मी तर नक्कीच म्हणेन की खूप कमी दिवसामध्ये माझ्या मित्राने आमदार चषक 2017ची ही शान वाढवली. अहोरात्र मेहनत केली आपल्या मित्र आणि निश्चितच सर्व क्रिकेट रसिकांना सोबत घेऊन, कारण प्रत्येकाची इच्छा होती की आमदार चषक झालाच पाहिजे आणि तशाच पद्धतीचं आयोजन केले आणि आज अतिशय चेहऱ्यावरती एक चांगलं समाधान वाटतंय आमदार चषक 2017च्या अंतिम दिवसामध्ये. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद मनोहर तरे. मित्रांनो पुन्हा एकदा क्रिकेट करूया. अति महत्वाचा सेमीफायनलचा मुकाबला बघतोय. या सामन्यातून जो संघ दरम्यान साहेबान टू विक्की म्हात्रे आता म्हणता मारण्याचा प्रयत्न होता, मात्र बॅटच्या पट्ट्यात अजूनही व्यवस्थित विकेटचा चेंडू येत नाहीये. प्रयत्नाची पराकाष्ठा मात्र चालू आहे आणि खराब थ्रो, मात्र दोन्ही फलंदाज मात्र एक्स्ट्रा धाव घेण्यासाठीच्या कुठल्या प्रकारच्या मूडमध्ये दिसत नाहीये. एक धावाने या अतिरिक्त धावसंख्येने धावसंख्या झाली ती 32. अजय गरज चांगला क्रिकेट चालू है अजून देखील. निश्चित रूप से बॉलिंग भी अच्छी हो रही है. एक छक्का जरूर लगाया लेकिन वो भी कोई खराब गेंद नहीं थी. थ्रू द लाइन शॉट खेला था वहाँ पर शेखर ने डाउन द ग्राउंड और विक्की को भी बांध कर रखने में कामयाब रहे साहिबान. आता मात्र सुंदररित्या त्या चेंडूला परत समोर पायाच्या समोरून फ्लिक केला होता आणि दानिश येतोय स्क्वेअर लेगवरून चांगलं क्षेत्ररक्षण करून आपल्या संघासाठी चांगली कामगिरी केलेली आता मध्ये आमदार चषकामध्ये. आता कुठे ते साहेबान फक्की चांगली गोलंदाजी करतोय पहिला दुसऱ्या चेंडूवरती षटकार लागल्यानंतर. बिल्कुल ज़्यादातर फुलर लेंथ की गेंदें की है उन्होंने इस ओवर में. बल्लेबाजों की भी यहाँ पर प्रशंसा करनी होगी कि कोई डॉट बॉल नहीं खेली है इस ओवर में और जो दबाव बी इंडियन के ऊपर था इससे पहले, इस ओवर से पहले, वो अभी भी बरकरार है. आता मात्र विक्की मात्रेला बघू शकता अजय घरत अजूनपर्यंत समाधानकारकरित्या तो सफाईदाररित्या चेंडू खेळू शकत नाहीये. ज्या कामासाठी पाठवलेलं आहे त्याला कुठेतरी अंजाम देण्यासाठी अयशस्वी ठरतोय. 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ. रन संख्या 33, 1 विकेट के नुकसान पर. आदर्श शिक्षक शंकर बळीराम भोईर सर आपलं हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम जगदीश नाईक, संजय भाई म्हात्रे, द लायन ऑफ भिवंडी. आपण यांना आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर आता पाहिलं. एक चांगलं नियोजन, चांगलं आयोजन, इंटरनॅशनल लुक देण्याचा एक जबरदस्त प्रयत्न आहे. आपण पाहतोय की जर आपण ड्रोनने जर आपल्या या निश्चितच छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणाला जर पाहिलं तर एक जबरदस्त कुठला तरी IPL ग्राउंड आपण पाहतोय. निश्चितच व्यासपीठावर विराजमान झालेल्या सर्व सन्माननीय पाहुण्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद रवींद्र तरे सर. मित्रांनो पहिल्या 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालेला आहे आणि धनेश या संघाने एकूण 33 धावा जमा केल्यात. बाद झालेला गडी आहे कुमार. पुढील 2 षटकामध्ये काय होतं हे सांगण्यासाठी धावतं विश्लेषण करण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय माझे साथी समालोचक अतिशय सुंदररित्या कॉमेंट्री करतात अजय घरत सर. धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स. तसेच निश्चितच आपण पाहतोय की जे आमचे कॅमेरामॅन आहेत ते कॅमेरामॅनसाठी जबरदस्त शुभेच्छा येतात, कारण आपण पाहतोय की प्रत्येक चेंडूची दिशा, गती आणि एक वेगळं लोकेशन घेऊन, वेगळं अँगल घेऊन आपल्या कॅमेऱ्याच्या डोळ्याच्या नजरेतून टिपतायत आमदार चषक 2017 साठी. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. ये स्कोर कार्ड इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर धनेश 11 का बैटिंग कार्ड देखिए. 15 पर शेखर खेल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा है यहाँ पर बी इंडियन के लिए. 3 ओवर्स में 37 रनों की आवश्यकता है. हरीश पंड्या मेरे साथ जुड़ते हुए कमेंट्री बॉक्स में. एक बार फिर से स्वागत है हरीश भाई. बहुत बहुत शुक्रिया अजय गरत. मैच बहुत ही इवनली पॉइज्ड है और यहाँ पर ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों टीमों के लिए. निश्चित रूप से बैटिंग पावर प्ले लिया गया है और आक्रमण अपना जारी रखते हुए उज्जैर आर.के. पाटिल स्टैंड एंड से. बोल्ड, बहुत ही बढ़िया गेंद. यहाँ पर विकेटों के पीछे खेलने की कोशिश की शेखर ने. खराब शॉट और बढ़िया गेंद. नक्कीच या ठिकाणी आपण पाहतोय तृषा विकास तरे तिच्या नावाने सुद्धा कमांडो बाईक साठी कुपन फाडले जात आहे आणि तृषा विकास तरेचा 7 तारखेला वाढदिवस सुद्धा आहे. ऍडव्हान्स मध्ये दिला वाढदिवसाचा गिफ्ट का मिळतो की काय, तिला शुभेच्छा तर देऊया तृषा विकास तरे. ये तो मानो खुला आमंत्रण था वहां पर उज्जैर के लिए कि आइए और स्टंप्स पर गेंद फेंकिए, विकेट लीजिएगा. संदीप केबल नेटने सुद्धा या ठिकाणी कमांडो बाईकची इच्छा व्यक्त केलेली आहे आणि एक सुंदर कुपन, थोडे कुपन शिल्लक आहेत
कमांडो बाईकवर स्वार व्हायचं असते तर लगेच या. धन्यवाद. हो टू कॉमेंट्री बॉक्स. अजय, मुझे ऐसा लगा गेंद ने मानो बल्ले को खुलजा सिमसिम कहा और बल्ला ऊपर, गेंद नीचे से चली गई. वो कुछ ऐसा ही दृश्य हमने देखा था जब मुनाफ बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका भी विकेट बिल्कुल इसी स्टाइल में गिरा था. और वैसे भी उजेर को हम देखें तो वो काफ़ी चतुर गेंदबाज है, थोड़ा भी उनको मौका मिले तो उसका निश्चित रूप से फ़ायदा उठाते हैं. नए बैट्समैन आए हैं जयेश पाटिल, नंबर 4 पर आए हैं बल्लेबाजी के लिए. आते ही करारा ड्राइव, लेकिन सीधे मिड ऑफ पर. काफ़ी ताकत थी शॉट में, जिस वजह से कोई रन नहीं मिला. काफ़ी तेज़ी से ट्रेवल की थी मिड ऑफ पर. बैटिंग पावर प्ले लिया गया है और पहली गेंद पर विकेट उसमें गवा दिया. शेखर दलवी थोड़े से निराश होंगे अपने आप से, क्योंकि सेट हो गए थे ऐसे लग रहा था, क्योंकि 15 रन बना चुके थे. स्विप किया है जयेश ने बैकआउट ऑफ द स्क्वायर गैप में. बढ़िया शॉट 4 रन के लिए. काफी अच्छा शॉट यहाँ पर. यस, जेपी स्पेशल. सगळे मातीच्या हाय जोडीला उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे अजय, सगळे मातीच्या अब दोनों विरोधाभास देखिए. शेखर वही गेंद पर जहां बोल्ड हुए, जेपी ने वही बॉल पर चौका लगाया. फर्क सिर्फ इतना था कि जेपी ने स्टंप्स को कवर करके रखा था और अच्छी टाइमिंग के साथ उस बॉल को अंजाम दिया. निश्चित रूप से शेखर ज्यादा अक्रॉस चले गए थे. और ये देखिए, ये गेंद हालांकि थोड़ी फुल टॉस ज्यादा फुल थी, जिस वजह से लाभ मिला जयेश को. इस बार मिस टाइम शॉट, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर है, कोई गलती नहीं. बड़े विकेट का पतन. साइबान फकी ने कैच लिया और जयेश पाटिल 4 रन बनाकर लौटते हुए पेवेलियन की तरफ. गाजतय नाव गाजतय रुपयाच्या गाजाच्या भिवंडी शहराला 9000 नंबर वाल्याचा त्या महेंद्र क्रिकेट संघाचा नाव गाजतय रुपयाच्या गाजाच्या भिवंडी शहराला. कैच लिया है, मतलब पीछे की तरफ जाते हुए कैच लेना आसान काम नहीं होता. आपको याद होगा 83 के वर्ल्ड कप में विपिन रिचर्ड्स का जो कैच कपिल ने लिया था मदन लाल की गेंदबाजी पर. हालांकि ये कैच की डिफिकल्टी लेवल उतनी नहीं थी, पर बहुत क्रूशियल सिचुएशन में जेपी ने गलत शॉट खेला वहाँ पर. और सहबान, मेहरबान, कदरनान, मैं हूँ बी इंडियन की जान, सहबान, ये कैच ले लिया. निश्चित रूप से वो पीछे पीछे जा रहे थे, लेकिन उनको पता था ये कैच लेंगे तो टीम थोड़ी सी आगे आएगी उनकी. तीसरा झटका लग चुका तन्मय है. विठ्ठल म्हात्रे याला सुद्धा आपण पाहतोय कमांडो बाईकचा हा कुपन खरेदी करताना. आमदार चषक 2017चा हा वेगळा कार्यक्रम आहे. अनेक रसिक प्रेक्षकांनी याला दाद दिलेली आहे. आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत. आणि मनोहर, आताच आपण प्रिन्स मूवीज याची चर्चा केली. त्याच्यामध्ये जवळजवळ त्याच्या 8 जबरदस्त कॅमेऱ्यामधून 8 वेगवेगळ्या अँगल मधून आपण पाहतोय आणि जबरदस्त एक इंटरनॅशनल लुक देण्याचा त्याचा प्रयत्न आज यशस्वी होतोय. आमदार चषक जेव्हापासून या क्रीडांगणावर आहे, प्रिन्स मूवीजने त्याच्या कॅमेऱ्याच्या अँगल मधून एक वेगळी दिशा देण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. मित्र, तुझे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. इस ओवर के शुरू होने से पहले 1 विकेट गिरा था, अब देखिए 3 विकेट्स गिर चुके हैं. बैटिंग पावर प्ले में बहुत बढ़िया गेंदबाजी उजेर की. 4 रन खर्च किए हैं और 2 बल्लेबाजों को आउट किया है. थोड़ी सी अब निराशा वहां पर डगआउट में नजर आती हुई. अजय, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि पावर प्ले का ओवर, आखिरी ओवर, ये सब करने के लिए एक जिगर चाहिए होता है. हिम्मत, मेहनत, लगन, जिगर, जोश, जुनून, जुस्तजू, साहस, शक्ति, संयम, ये सारी चीजें गूगल के प्ले स्टोर से आप डाउनलोड नहीं कर सकते. इसको पैदा करना पड़ता है. क्या खूब कहा है आपने. क्रिकेट के प्रति समर्पण, कटिबद्धता होनी चाहिए. आपको मैच जीतने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों को इकट्ठा लाना पड़ता है. एक और अच्छी गेंद. विकी मात्रे जब से आए हैं मिड विकेट की तरफ देख रहे हैं. कोई भी गेंद उनको मिली है, सिर्फ एक ही जगह मानो उनको नजर आ रही है, वो है मिड विकेट. शायद वहाँ कोई मैग्नेटिक ताकत है जो उनको बार बार आवाज लगा रही है. और उस चीज़ को भी भाप लिया है गेंदबाजों ने. आज दर्शक तो बहुत ही ज़बरदस्त संख्या में आए हैं, और क्यों ना आएंगे. पिछले 2-3 सालों में हम देखें, सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट यदि कोई रहा है भिवंडी सिटी टेनिस क्रिकेट में, तो वो धनेश 11 कुकसे और बी इंडियन का है. पावर प्ले की आखिरी गेंद. लोअर फुल टॉस हवा में, लेकिन कैरी नहीं की फील्डर तक. कोई रन नहीं इस गेंद पर.
बहुत ही बढ़िया ओवर समाप्त होता हुआ उज्जैर का सफल ओवर Thank you, comment. 4 ओव्हर्स के बाद 37 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। धन्यवाद. नक्कीच आज व्यासपीठावर मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे. सामाजिक कार्यकर्ते मच्छिंद्र पाटील त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करण्याची विनंती जगदीश नाईक यांना करतो की आपल्या शुभस्ते आपण त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. आमदार चषक 2017 मध्ये व्यासपीठावर आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम, सुस्वागतम. तसेच सन्माननीय सामाजिक कार्यकर्ते टेंबर रमेश फुलोरे यांना विनंती करतो आपण पुढे यायचं आहे. त्यांचं देखील स्वागत आणि सन्मान करण्याची विनंती जगदीश नाईक यांना करतो की आपल्या शुभस्ते आपण त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे. जवळजवळ 1000 पेक्षा जास्त पाहुण्यांनी या 7 दिवसामध्ये हजेरी लावलेली आणि आमदार सुद्धा भरपूर महाराष्ट्रातील पाहतोय. तसेच नागावचे सामाजिक कार्यकर्ते संतोष भगत यांना विनंती करतो आपण पुढे जाऊ. संतोष तरे यांना विनंती असेल की आपल्या शुभस्ते यानंतर संतोष तरे आपण स्वागत आणि सन्मान करायचे. अजमन शेख, अमजद शेख आपण पुढे यायचं आहे. त्यांचं देखील शिवसेनेचे कार्यकर्ते आहेत अमजद शेख आणि शिवसेनेचे गटप्रमुख संतोष तरे त्यांचं स्वागत करतात. वेलकम, सुस्वागतम. आमदार चषक 2017 मध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. धन्यवाद. ओव्हर टू कॉमेडी बॉक्स. तो धन्यवाद अजय घरत. अजय, अभी ये जो मुकाबला है ये मतलब जिसको कहते हैं ना कातिलाना हो चुका है. मैं कई बार अपने जीवन में मैंने देखा है 1 बॉल में 6, 1 बॉल में 4 बन जाते हैं, लेकिन बॉल टू बॉल इक्वेशन कभी हो नहीं पाता. क्रिकेट की ये विचित्रता है. अब यहाँ पर ये इक्वेशन बहुत डेंजरस है. 12 गेंदों में 33 रन दिखते डिफिकल्ट है, लेकिन ऑल इट टेक्स इज अबाउट 2-3 गुड हिट्स. तो ऐसी परिस्थिति में अगर मान लीजिए आप धनेश के टीम मेंबर होते तो आप अपने खिलाड़ियों को क्या कहते? यहाँ से कैलकुलेशन बहुत महत्वपूर्ण है. 12 गेंदे हैं, 33 रन बचे हैं. जैसा कि आपने कहा कि 2-3 बड़े शॉट्स पूरी तरह से उनको लक्ष्य के नज़दीक लाकर खड़ा कर सकते हैं. अब वो 2-3 शॉट्स कौन सी गेंदों पर खेलेंगे बल्लेबाज, ये बहुत महत्वपूर्ण है. सही बात है. कौन सी गेंद पर खेलेंगे, कहां पर खेलेंगे और कैसे खेलेंगे, ये सारे सवाल है. मैनेजमेंट में एक टेक्निक है 5 व्हाइज. जब भी आप अपने जीवन में कोई समस्या से जूझते हैं तो मैनेजमेंट में ये पदार्थ पाठ सिखाया जाता है कि 5 बार वाई सवाल पूछिए. वाई 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 5 बार जब आप वाई पूछेंगे आपको जवाब मिल जाएगा. तो ये आप देख रहे हैं कमांडो बाइक, जिसको हासिल करने के लिए तमाम जनता अब कूपन ले रही है. उसके साथ में एक मैन ऑफ द सीरीज की आप मोटर बाइक भी देख रहे हैं. इरफान वायरमैन इनके द्वारा स्पॉन्सर की गई मैन ऑफ द सीरीज की बाइक है. उसके ठीक बगल में कमांडो बाइक है. और ये तो कैप्टनों का परफॉर्मेंस अजय जरूर यहां देखेंगे. भावेश पवार 2 ओवर 20 रन 3 विकेट और उजैर 2 ओवर 11 रन और 3 विकेट. इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे. नए ओवर की शुरुआत आकिब द्वारा और वाइड बॉल से शुरुआत. 12 गेंदे और 32 रन. जी हाँ, कप्तानों के परफॉर्मेंस के बारे में मैं जानना चाहूंगा. दोनों भी जो टीमों के कप्तान हैं अपनी तरफ से 100% देने की हमेशा कोशिश करते हैं. आज देखिए भावेश पवार ने अपनी टीम को बहुत अच्छी स्थिति में लेकर आए. जिस तरह से उन्होंने हैट्रिक ली, गेंदबाजी शानदार की, और अब भी जिम्मेदारी उनके ही कंधों पर है. बल्ला उनके हाथ में है, इस समय क्रीज पर है. नक्कीच. आणि एक चांगला संघनायक तोच असतो जो शीघ्रकोपी नसतो. डोक्यावर उलटाचं एसी ठेवून खेळावं लागेल संघनायकांना या स्पर्धेमध्ये जर हा चषक जिंकायचा असेल, कारण हा आमदार चषक आहे. परत एकदा वाईड चेंडू, स्वैर मारा आणि ही गोलंदाजी कुठेतरी महाग पडू शकते. काल रात्री त्याने केलेली गोलंदाजीचं कौतुक जेवढं केलं तेवढं कमी आहे. अकीब की तरकीब जिसने बदला बी इंडियन का नसीब, अशी एक म्हण काल झाली. मात्र आज बघावं लागेल. 12 चेंडू 31. आताचा मोठा फटका आणि कॅप्टन शॉट. जोरकस मारलेला हा पुलचा फटका.
था वही हुआ। बाएं हाथ के गेंदबाज को बाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने लाए, हवाएं उस दिशा में चल रही है मिड विकेट की तरफ, और जानते थे गेंदबाज भी कहीं ना कहीं भावेश पवार उस दिशा में खेलने का प्रयास करेंगे। इसी वजह से उन्होंने पहली 2 गेंदें ज्यादा बाहर रखी थी, वाइड हुई, लेकिन इस बार थोड़ा छोटा रखा और मौका मिला वहां पर भावेश पवार को। सर, ये देखिए कैसे स्थिति बदल जाती है मैच में। अभी जस्ट 1 ओवर पहले 5 डॉट बॉल्स गई थी और विकी खड़े रहे थे पिच पे और कुछ नहीं कर पाए थे, और दूसरे ओवर में आते ही 2 बॉल वाइड गई और तीसरे पे बाउंड्री। दुसरी एक गोष्ट अजय मला सांगावीशी वाटते, पुढचे 2 चेंडू वाईड होते म्हणून त्यांनी कुठल्याही परिस्थितीत यष्ट्यांवर चेंडू टाकावा त्या पद्धतीने प्रयत्न केला आणि तो सबशेल फसला. 45 3 गडी बाद, 70 धावांचं लक्ष्य आहे, 25 ची गरज. आताचा चेंडू अतिशय चांगला चेंडू होता फुलरलेनचा, मात्र जास्त तिथे स्वतंत्रता मिळाली नव्हती, तरी 2 धावा पूर्ण केलेत भावेश पवारनी. कर्णधाराला साजेशी खेळी खेळतायत ते. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे स्पर्धा जिंकण्यासाठी दर्जा, क्षमता आणि दरारा ह्या 3 गोष्टीची गरज असते आणि धनेश 11 मध्ये ते 3 गुण आहेत. मात्र ते इथे दाखवताना भावेश पवार जबरदस्त लढवय्या म्हणून आज लढतोय आपल्या संघासाठी. आता 10 चेंडूमध्ये 23 धावांची गरज आहे. परत एकदा मोठा फटका आणि यावेळेला सुद्धा चेंडू सीमारेषेचा बाहेर निघून गेलाय. गगनभेदी षटकार. मैं तो अक्सर कहता हूँ ये जो भावेश पवार है ना, ड्रॉप सीन में आते हैं और हीरो बन जाते हैं और कभी कभी जीरो. ये देखिए क्या खूबसूरत शॉट खेला था बैकफुट पे जाके, बहुत ही करारा फोर्सिंग स्ट्रोक, 6 रन. जबरदस्त फटका मारला होता आणि या षटकाराने हसू आणलाय धनेश एकादश यांचा संघावर. अजय परिस्थिती कशी बदलते. काल कालिया नाग सारखा दिसणारा अकीब आज त्याची गोलंदाजी निर्विष वाटते मला. काय शायद यही होता है कैप्टन का काम. कहीं जस्ट 1 ओवर पहले जो धनेश है वो थोड़ा प्रेशर में आने लगी थी, वहीं कैप्टन ने आके उस प्रेशर को हटा दिया और फिर से फॉर्म में आ गए हैं. इस ऑल राइट आरती, आपको कोऑर्डिनेशन देना है कमेंट्री बॉक्स को. अब बात कर रहे थे कल के मैच की, लेकिन कल के मैच में और इस मैच में काफ़ी फ़र्क है. कल परिस्थितियां अलग थी, फ्लडलाइट्स की रोशनी में गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाज अलग थे. इस बार उनको भी पता है कि भावेश पवार जो है वो ऑन साइड में तो बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है, लेकिन फिर भी लेंथ को ठीक तरह से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं. दोनों भी छोटी गेंदें रखी उन्होंने, दोनों मैदान के बाहर भेज दी भावेश पवार ने. जबरदस्त खेळी दाखवतोय तो एक संघनायक म्हणून. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्याच्या चेहऱ्यावर कुठले हावभाव नसतात, म्हणजे तो जमिनीवर असतो आणि आपली क्रिकेट खेळत असतो, आणि ते त्याचा सर्वात मोठा असा हा गुण आहे संघनायकाचा. 9 चेंडू 17 धावा पाहिजे आणि अकीब स्वर्गीय श्याम नाईक अँडी कडून गोलंदाजी करतोय डाव्या हाताने ओव्हर द विकेट. परत एकदा वाईड दिलं जातोय आणि आता कुठेतरी चित्र बदललंय. धनेश यांनी हा सामना आपल्या बाजूने झुकवलाय. एक गोष्ट नक्की आहे, पहिल्या डावामध्ये त्यांची परिस्थिती गंभीर होती, मात्र एक गोष्टीचा जर आपण विचार केला की धनेश 11 हा संघ लढाऊ, समतोल आणि बलाढ्य आहे, ते विसरून चालणार नाही. मोठा फटका बघायचा आहे, झेल बाद होतोय की काय, आणि ओ माय गॉड जमा. इकडे आवाजही आपलाच हवा. मैच को जीत लिया तो हम कहेंगे कि जमा ने कैच नहीं मैच पकड़ा है. डेंजर मैन भावेश पवार आउट होके जाते हुए कप्तान साइड लाइन पे इस वक्त जुड़ रहे हैं आरती गुप्ता से. यहाँ मेरे साथ जुड़ चुके हैं भावेश. भावेश, आपने कुछ ही बॉल्स खेली लेकिन बहुत अच्छा वहां पे परफॉर्मेंस दिखाया, तो
आपको लगता है कि अब आपकी जो टीम है वो जीतने की स्थिति में पहुंच चुकी है? हाँ, जीत जाएगी। हेमन आराडे, विकी मात्रे, मैच तो जीत जाएगा। ये थे मेरे साथ भावेश, जिनका ये कहना अब तो मैच वो जीत ही जाएंगे। ओवर टू यू इन कमेंट्री बॉक्स। जबरदस्त झेल घेतला. काल जमाच्या हातातून झेल सुटला होता रात्री आणि आज जमाने झेल घेतलेला आहे. म्हणजे हा जो टर्न अराउंड असतो स्वतःशी बोलत राहावं लागते. मी काल काय केलं होतं, आज मला काय करायचं आहे, कालच्या चुका मी आज पुनरावृत्ती करणार नाही आहे. आणि तेव्हा तुम्ही चांगले क्रिकेटर होता आणि अतिशय चांगला झेल आणि या झेलने काहीसा या सामन्यामध्ये बी इंडियन संघाला आणलाय. आता चेंडू शिल्लक आहेत 8 आणि धावा हवेत ते 16. नवीन फलंदाज आहेत हेमंत हरड, त्यांच्या जोडीला आहेत विकी मात्रे. मात्र विकी मात्रे आता बिन आक्रमण कक्षामध्ये आहेत. आक्रमण कक्षामध्ये उभे आहेत ते हेमंत हरड. गोलंदाजाचा कर्दन काळ, फलंदाजाचा कर्दन काळ, दोघांचा कर्दन काळ म्हणावं लागेल, कारण आताच काही दिवसापूर्वी मॅन ऑफ द सिरीजचं पारितोषिक सुद्धा त्यांनी जिंकलं होतं. मोठा फटका आणि हा चेंडू, जबरदस्त फटका मारला होता हेमंत हरड यांनी मारलेला हा गगनभेदी षटकार. केलंय मधवड गावाला, आमदार चषकाचं आयोजन केलंय, केलंय गिरधर पाड्याला. लेकिन हेमंत हरड जो थे वो क्रीज में काफी पीछे चले गए थे. हाफ वाली बनी वहां पर और उसका भरपूर लाभ उठाते हुए बहुत ही कड़क और बेधड़क शॉट. टोले जंग षटकार मारण्यामध्ये ज्याची ख्याती आहे असा हा फलंदाज, आणि ज्या वेळेला बॅटेतून आवाज निघाला असं वाटलं दमदार फॉर्म जो आहे त्याचा तो द्योतक आहे. ज्या पद्धतीने तो खेळतोय, कारण आता धावा झालेत ते 60 आणि आता 7 चेंडूमध्ये 10 धावा पाहिजे. यहाँ पर क्रेडिट देना होगा हेमंत हरड को, जिस तरह से उन्होंने शॉट बनाकर खेला है क्रीज का उपयोग करते हुए. गेंद में कोई खास खराबी नहीं थी. देखिए भावेश पवार को भी जो 2 गेंदें उन्होंने अच्छी की थी, जिस पर एक पर 2 रन बने और एक पर भावेश पवार आउट हुए, वो भी इस तरह की गेंदें थी. लेकिन चूंकि भावेश पवार थोड़ा सा आगे खेल रहे थे, उनको उन गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजने में दिक्कत आई. लेकिन हेमंत हरड पीछे चले गए और उन्होंने उसका लाभ उठाया. जबरदस्त फलंदाजी करतोय हेमंत हरड. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हा धाडसी असा फलंदाज आहे, बिंदास असा फलंदाज आहे आणि त्यानं आपला बिंदास्तपणा दाखवून दिलेला आहे. अकिबच्या या षटकामध्ये धावांची लय लूट आपल्याला बघायला मिळत आहे. या षटकामध्ये आतापर्यंत जर बघितलं 23 धावा आलेल्या आहेत आणि आता शेवटचा चेंडू आहे या षटकातला आणि हा चेंडू निर्णायक ठरणार आहे, कारण ह्या चेंडूवर काय घडतंय काय बिघडतंय त्याच्यावर शेवटचा षटकाचा दारोमदार असणार आहे. 7 चेंडू 10 धावा. परत एकदा वाईड चेंडू आणि आता 7 चेंडू 9 धावा. प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं इस मैच में युवा गेंदबाज आकिब. और क्रिकेट में खेल में कहा जाता है कि खेल से बड़ा कोई नहीं होता है. कल यही आकिब 13 रन उन्होंने नहीं दिए थे आखिरी ओवर में, और आज देखिए 24 रन अभी तक दे चुके हैं. अजून एक चांगला फटका, मात्र एक धाव जरी भेटली तरी तो स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवणार आहे. दुसरी धाव घ्यायचा प्रयत्न नक्कीच ते करणार नाही आहेत. मतीन तिथे चांगले यष्टीरक्षण दाखवत आहेत. तर षटक संपतायत. 5 धावसंख्या झाली आहे ती आता 62 आणि आता 6 चेंडूमध्ये 8 धावा पाहिजे आणि धनेशने जबरदस्त टर्न अराउंड केला है या सामन्याला. निश्चित रूप से स्थिति तो मजबूत है, लेकिन खेल अभी भी समाप्त नहीं हुआ है. और बी इंडियन हमने अक्सर देखा है मैच को कभी भी छोड़ते नहीं है, चाहे फिर 6 गेंदों में 2 रन हो, 8 रन हो या फिर 22 रन हो. वो नक्कीच अपना या ठिकाणी प्रतीक मनोज पाटील जे शिवसेनेचे उपशहर प्रमुख आहेत त्यांनी सुद्धा कमांडर बाईकवर बसण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. अरुण सरांच्या शुभ हस्ते आपण नक्कीच त्याने कुपन देतोय. 2 कुपन त्यांनी फाडलेले आहेत. धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूप खूप शुभेच्छा, धन्यवाद. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. 6 चेंडूमध्ये 8 धावा पाहिजे असताना आता शेवटचं षटक टाकण्यासाठी गोलंदाजीची जी जबाबदारी आहे ती मतीने स्वतः आपल्या खांद्यावर घेतलेली आहे. काय वाटतंय अजय? कहीं ना कहीं उन्होंने खुद कहा है कि मैं गेंदबाजी करूंगा, नतीजा जो कुछ भी होगा लड़ूंगा जरूर. सोच तो पॉजिटिव है उनकी, देखना है निर्णय क्या आता है. नक्कीच
जबरदस्त गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक आज भावेश पवार यांनी दाखवलं, हुझैरनी दाखवलं. एक क्षण असं वाटलं भावेश विरुद्ध हुझैर असा हा सामना होईल, मात्र आता कुठेतरी शेवटचं षटक आहे. 6 चेंडूमध्ये 8 धावांची गरज. हेमंत हरड पहिला चेंडू अतिशय छान, चेंडूला हवेमध्ये फक्त सोडला होता मतीन यांनी. त्यांना माहीत आहे हेमंत हरड मोठे फटके मारण्यामध्ये सराईत आहेत आणि म्हणून त्यांचा पद लालित्याची ती परीक्षा घेणारा तो चेंडू त्यांनी टाकला होता. 5 चेंडू 8 धावा. हेमंतचा हा फटका आणि याच बरोबर चेंडू सीमारेषेबाहेर. जबरदस्त षटकार. जीत की दहलीज पर आकर खड़ा कर दिया है हेमंत हरड ने अपनी टीम को. 4 गेंदों में मात्र अब 2 रनों की जरूरत. पहली गेंद अच्छी की थी, ये शॉट रही. यहाँ से पेविलियन बॉक्स में तो जीत की खुशियां मनानी इन लोगों ने शुरू कर दी है और इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी जीत पक्की हो चुकी है. क्या कहना चाहेंगे भावेश? कुछ नहीं कहना चाहूंगा. हेमंत को बोलेगा ये मैच पे सिंगल करके मैच अपने को जिताए. ओवर टू यू. म्हणजे नक्कीच मी जर त्याचा फॉलोअर असलोच तर एकच सांगितलं असतं, हेमंत आमचा लकी आहे आणि जीत आमची पक्की आहे. तर असं आहे, 68 वर 4 आणि आता 2च धावा पाहिजे. अजय, एक गोष्ट नक्की आहे, या वर्षी मात्र आपल्याला नवीन चॅम्पियन संघ बघायला मिळणार आहे. गेली 2 वर्ष सातत्याने हे चषक जिंकणारा बी इंडियन संघ या वर्षी मात्र आपल्याला एक नवीन विजेता बघायला मिळेल. ये संभावनाएं तो कुछ वैसी ही है अब, क्योंकि 3 गेंदों में 1 रन मात्र चाहिए धनेश 11 को फाइनल में पहुंचने के लिए. स्कोर्स बराबर हो चुके हैं और देखना है वहां पर क्या अंपायर ने आउट घोषित किया है या नहीं. जी नहीं, स्ट्राइक विकी मात्रे के पास रहेगा. दर्शकों से गुजारिश है कि मैच समाप्त होने के बाद आपको अंदर नहीं आना है. किसी भी टीम का समर्थक अंदर नहीं आएगा मैच खत्म होने के बाद. धनेश 11 विजेता का झाला तर याची जर आपण कारण मीमांसा केली तर आपल्याला समजेल. अख्तर त्याला गोलंदाजीतून बॅन केला, भावेश पवार आला आणि तो आपल्या संघासाठी प्राण वाचवणारा चिकित्सक म्हणून आला आणि आता कुठेतरी त्याने आपल्या संघाला विटामिन आर सुद्धा दिलं आणि आता तंदुरुस्त अशा स्थितीमध्ये ताजा तवाना अशी स्थिती करून त्याने आपल्या संघाला विजयश्री मिळवून द्यायचा प्रयत्न केलाय. आणि याचबरोबर क्या बात है, और ये धनेश ने जीत दिया इस मैच को. और जो 3 टूर्नामेंट का उन पर बैन लगा था उन्होंने इस मैच को जीत के दिखा दिया है. वो अपनी भड़ास निकाल दी इस मैच में जीत के. भाऊ गव्हाणवरून रामचंद्र डोंगरे आमदार शुभेच्छा दिल्या. तसेच मंगेश ठाकरे गोरसे यांनी सुद्धा शुभेच्छा दिल्या आहेत. अतिशय सुंदर विजय या ठिकाणी संपादित केलेला आहे. धन्यवाद दोन्ही संघातील खेळाडूंचं खूप अभिनंदन. आपण आमदार चषकामध्ये अतिशय सुंदर खेळ सादर केला त्याबद्दल आमदार रुपेशदादा म्हात्रे आणि संजयभाई म्हात्रे यांच्या वतीने आपलं खूप खूप अभिनंदन. व्यासपीठावर विराजमान मान्यवरांचं आपण स्वागत आणि सन्मान करूया. व्यासपीठावर उपस्थित श्री कालिदास शांताराम ठाकरे कट्टर शिवसैनिक गोरसई त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं मी त्यांना विनंती करतोय. आपण पुढे यायचं आहे. श्री कालिदास शांताराम ठाकरे गोरसईचे शिवसेनेचे कार्यकर्ते आहेत, कट्टर शिवसैनिक आहेत. त्यांचं स्वागत आणि सन्मान व्यासपीठावर होत आहे. आणि मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड पाहूया कोणाला जातोय. तर नक्कीच अतिशय सुंदर या ठिकाणी सामना विजयी केला जातोय. पुढे एकदा आपल्या सर्वांचं आमदार चषक 2017 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम, सुस्वागत. आज मेगा फिनाले रसिक प्रेक्षकांची दुपारी 3 फाइनल में पहुंच चुके हैं. अभिनंदन. पांडुरंग धर्मा पाटिल मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं. अरफन मौला खिलाड़ी, टीम के कैप्टन, द कैप्टन लीडिंग फ्रंट. भावेश पवार इज द मैन ऑफ द मैच. व्हेरी गुड. आणि भावेश पवार ज्याने
12 चेंडूमध्ये 33 धावा बाकी असताना 23 धावांची जी फटकेबाजी केली आणि संघाला तारण हाटणारा तो भावेश पवार आपण स्टेजवर यायचा आहे. मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड आपण त्याला देतोय. प्लीज वेलकम स्टेज भावेश. मनोज पाटील उपशरक प्रमुख यांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते ही ट्रॉफी आपण द्यायची आहे, जी स्पॉन्सर केलेली आहे एसडीएस ग्रुप, शिवसेना शहर सचिव दिलीप अप्पा नाईक आणि ओमसाई ॲटोकिंगचे प्रोप्रायटर सुरेंद्र शंकर पाटील यांच्या माध्यमातून, तसेच तेलंगा उपराज्य प्रमुख शिवसेना कार्यकर्त्यांच्या शुभ हस्ते ठिकाणी मोमेंट दिला जातोय. तसेच मोहन दादा नाईक जो गिफ्ट टेम्पल, मोहन दादा नाईक सन्मानित उद्योगपती आहेत, शाखा प्रमुख बबन पाटील यांच्या माध्यमातून, तसेच नरेश मामा माळी जे बोरपाड्याचे सामाजिक कार्यकर्ते त्यांचं देखील हा संघ आपण पाहतोय. त्यांच्या शुभ हस्ते गिफ्ट टेम्पल आणि भावेशचे 2 शब्द आपण नक्कीच ऐकणार आहोत, कारण की काटेकी टक्कर होती. काय म्हणशील भावेश? अरे सर भावेश, अभिनंदन. कसं वाटतं या विजयाबद्दल, काय प्रतिक्रिया? चांगलं असं वाटतंय आणि 4 वर्षामधून आम्ही पहिली बार फायनल केलं आमदार चांगलं वाटतंय मला. आणि निश्चितच एक मानसिक दबाव होता. दबाव तर होताच, सामनेवाली टीम पण चांगलीच होती, पण दबाव आम्ही घेतला नाही. कुठेतरी तुझ्या बाद झाल्यानंतर संघ संकटात आले असं वाटतं? नाही, बॅटिंग लाईन चांगली होती, हेमन आरड होतं तर आम्हाला वाटलं होतं मॅच जिंकू आम्ही. आमदार चषकामध्ये खेळताना आनंद वाटतोय? फुल एन्जॉय करतो. कसं वाटलं? चांगलं वाटलं. अभिनंदन धनेश 11.